कितने क्लाइंट्स होंगे आपके 500 प्लस फैमिलीज आर देयर. ओके. स्टॉक मार्केट तो बहुत खराब चीज़ है. खराब चीज़ है वो. एक माइंडसेट बन गया. It was a bad day for the Indian stock market. तो इज इट अ गुड थिंग टू बाय? If you are having, let's say, iPhone, you are purchasing it. Most of the iPhones, 70% iPhones are on EMI. If you are in 25,000 bucks of salary, why do you really need iPhone? काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी डू यू यूज? बेसिकली आप लॉन्ग टर्म का सोचते हो या कुछ स्टॉक्स आप ऐसे बाय करते हो 1-2 साल में एग्जिट, कुछ स्टॉक ऐसे के 5 years, कुछ स्टॉक ऐसे 10 years, ऐसा कुछ होता है क्या? अगर कोई 22 साल का है पर्सन, उन्होंने सोचा कि मुझे स्टार्ट करना है. स्टार्ट विथ द रूल ऑफ 25. द रूल ऑफ 25 सेज फर्स्ट 25% ऑफ योर मनी मस्ट गो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. Second 25% goes for your emergency fund. Next 25% should be maximum for your EMI and maximum 25% for your personal expense. ये सब प्राइस पे कम्पीट करेंगे. वो स्टेज आता था कि सब माल देख रहे तो भाई तू कितने में बेच रहा है? In terms of when to sell, how much to sell, should I sell in tranches or all at once? At what time of the day I am selling? If they are investing like around 10, 15 या 20,000 पर मंथ SIP कर रहे हैं, उनको उस हिसाब से पोर्टफोलियो अपना मैनेज करना चाहिए. Basically, when you are investing, the first thing is about. Second one is around. Third and the important one, which wherever you are investing, it's never like you keep on investing till the time you need money. It also comes to the stage where you need to book your profits. Now the problem starts. सो मोस्टली अभी आप 500 से प्लस आपके वेल्थ मैनेजर हो. मोस्टली अब सारे मतलब आपके क्लाइंट्स, कितने क्लाइंट्स होंगे आपके? 500 plus families are there. ओके. तो मोस्टली लेट्स टॉक अबाउट मार्केट. जो आप बोल रहे Yeah. थे कि भाई कौन सी पोटेंशियल है कि जो अभी अपसाइड में इन्वेस्ट करना चाहिए सबको. हाँ. Okay. So यार सबसे पहला जो let's understand it this way. That's till 2024. Trump wasn't there much on the picture. हाँ. April 24 में he came in. He started doing some good work for the US economy And bad for us. and bad for everyone others हाँ, हाँ, because till now how it was planned. So till now US was the US. In fact, we all say that we are the largest democracy, correct? But US is one of the largest consumer. So whatever we sell it to US. Not just us, many countries across the world. But it's changing ना. Mostly a lot of companies are coming to India for our consumption. Apple Again. आ गई है, वो सब आ गई है. Why would they come? Apple is, of course they have came in, but these companies are not shifting their manufacturing base overnight. This will take some time. It will happen over the next 2 years, 3 years, 4 years. But people want option from China. That's what the Yes, they plus need. one strategy is all about. China plus Yeah. one strategy is there. But again, as you have seen, China has such a huge, massive, production facilities available. On a cost basis, it is becoming quite difficult to come out of China. Also, thanks to Trump, I would say that now US and China is somewhere not going hand on hand. Correct. In fact, India, China, and Russia, BRICS nations, we would say, are the 3 leaders. Yeah. We are, going together now. Correct. So now Chinese government is giving lot of land and lot of other, we would say, benefits to start their business in China or doing the manufacturing activity in China itself. उनका इकोसिस्टम भी तो है ना वहाँ पे. सारी चीज़ है. इकोसिस्टम है. हाँ. चीप लेबर भी है एंड स्किल्ड लेबर है. और अपने से ज़्यादा काम करने चाहते हैं वहाँ पे. मतलब Yes. वर्क कल्चर भी है जो यहाँ पे नहीं है. नहीं है. Comparatively नहीं है. यहाँ पे 9 to 6 हाँ. means that mindset is now being there in many of the MNCs. Correct. China में वो चीज़ नहीं है. So one thing as a manufacturer, if I am there, I of course need a skilled labor. Second thing, I need cheap labor. Third thing, I need raw material. Many of the things are already there with China. So those 3 problems are sorted. Plus I need a stable government. Now China has since long. Correct. So now that problem is also not there. Yeah. So policies won't change. अपने यहाँ पे हर 5 साल पे कुछ ना कुछ होता है. करेक्ट. सेकेंड थिंग, स्टेट टू स्टेट चीज़ें बदल जाती है. चाइना में वो चीज़ नहीं है. सो दिस आर द बेनिफिट. ऑन पेट्रियोटिज्म साइड ऑफ कोर्स इंडिया इज ऑलवेज द बेस्ट. बट अगेन दिस थिंग्स आर देयर. सो फॉर देम ऑल्सो शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया ऑन अ ओवरनाइट बेसिस इज क्वाइट डिफिकल्ट. दे आर डूइंग इट. ओवर द टाइम इट विल हैपन. Now, in between, Trump has came in, he imposed lot of tariff on India and many other things. Going forward, what? So going forward, we are having tariff 18% now. When we are recording this, we don't know what happens tomorrow. Yeah. Right? So right now, for auto sector, we might be having good benefit. Okay. Particularly. Yeah. Second thing, you can look at lot of domestic businesses also. Like your financials.
banking sector, private banks. I'm not talking about PSU. Okay. They have already done a good rally. हाँ उनका Talking हो गया about private banks. HDFC Bank is Kotak हो there. I गया. say again, हाँ. not a buying selling, but on a private bank side, just to give you the perspective, what to be considered or how it should be looking. We should be looking at it. Okay. So those are the two sectors which are quite good on Okay. a consumption side as well. Okay. Your consumption sector is available at very cheap. FMCG. FMCG Hindustan is Unilever one and all? sector. See, Okay. again, when you are investing, there are two things. One is theme. Second one is sector. Okay. What I am discussing about is sector and theme. Okay. And when I say consumption, it's about the theme. Okay. So probably consumption is anything which you consume on regular basis, Okay. starting from your FMCG products हाँ. to some of your housing related products also. वर्लपूल हो गया, मतलब बहुत सारी कंपनीज है जो बहुत सारी कंपनीज हाँ, आ जाएगा. हाँ, हाँ, उसमें इलेक्ट्रिकल भी होगा, नॉन इलेक्ट्रिकल भी होगा. ओके. Right, those things are also there. But again, what I'm saying is, if you say that I'm not able to understand clearly the automobile or private sector banks, still consumption is some of the product that we all are using regularly. It has very less to do with the global market. Of course, it is linked. Overall market गिरेगा तो ये भी गिरेंगे. इफेक्ट तो आने वाले सब पे. इफेक्ट सब क्या है. हाँ. But again, these are available on a more cheaper basis comparatively. चलो, let's be honest. या 12 लाख तक का इनकम, हाँ. उसके ऊपर टैक्स जीरो कर दिया. इफ यू आर अर्निंग टिल 12 lakh or 12,75,000, the tax is already zero. 1 lakh is given. हाँ, you know, सही बात है. GST रेट कट हुआ तो बोले किया, गवर्नमेंट को जो करना था वो कर दिया. वो फेल कहाँ पे हुए? The failure happened with managing the corporates. ओके. The way in which GST cut was there, हाँ. it was expected that the prices of the product will not increase. There are a lot of companies. I don't want to name any company, but उन्होंने प्रोडक्ट चेंज कर दिया, क्वांटिटी चेंज करते हैं ना. क्वांटिटी चेंज कर दिया. हाँ, 10 रुपए का वेफर देख लो ना, वो पहले Correct. अपने खाते थे और अभी इतना सा हो गया. दैट इज द श्रिंकफ्लेशन. हाँ. करेक्ट. मतलब वो तो ओवर द टाइम हुआ. हाँ. आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स से, कार कंपनीज देयर. हाँ. अब जो पुराने कार के मॉडल आते थे वहाँ पे कम रखा प्राइस, बट उसके नंबर ऑफ क्वांटिटी कम कर दिए, एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सेलिंग अप न्यू मॉडल्स इन द मार्केट विथ सम स्मॉल चेंजेस. तो प्राइस वापस से एडजस्ट हो गया. तो रियलिटी एक्सपेक्टेड था मार्केट में ये फ्लो आउट होगा, ओके. बट उतना फ्लुएंटली चीज़ें पास ऑन नहीं हो पाई शायद से. करेक्ट. सेकेंड वॉज अबाउट द इनकम टैक्स बेनिफिट. नाउ व्हेन यू आर चेंजिंग द इनकम टैक्स, थिंक अबाउट इट. You are changing making the change last year. The returns will be filed this year. You file you have your income is till March 26. Yeah. Correct. And then you file the return by July 26. Yeah. Correct. That is the deadline roughly. Yeah. July or August. हाँ. तो पूरा जो टैक्स का बेनिफिट पास ऑन होना है वो ओवर द 1.5 year होता है पास ऑन. इट डजंट हैपन ओवरनाइट इनकम टैक्स का. बट इफ यू लुक एट GST, तो GST गेट्स पास्ड ऑन इमीडिएटली, क्योंकि GST का जो कट है वो 22 September को दे अनाउंस्ड, 10 September समवेयर देर अनाउंस्ड, एंड 22 September से इट यूज टू गेट रिड्यूस. सो इट गेट्स पास्ड ऑन इमीडिएटली बिकॉज प्राइस डिक्रीज इमीडिएट आएगा. राइट. बट इनकम टैक्स इज ओवर द टाइम. तो नाउ पीपल आर सेइंग मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है. वेल, एवरी टाइम वो अगर दे रहे तो सामने आपके पास से कहीं ना कहीं पे लेना भी पड़ेगा, बिकॉज इट्स ऑलवेज बजट. करेक्ट. इनकम एंड द एक्सपेंस, इट बोथ गोज हैंड इन हैंड. तो जो एक्सपेंस हो रहा है उसके लिए इनकम आना चाहिए. आप बताते हो गवर्नमेंट को ज़्यादा स्पेंडिंग करना चाहिए, बट स्पेंडिंग के लिए इनकम तो होना चाहिए. हाँ, बराबर है. सो वो कितना कट डाउन करेंगे? हाँ, प्रॉब्ली सम अदर वे इन विच दे कुड हैव एड्रेस्ड इट. पर्टिकुलरली, if you ask me, the STT thing came in. You need to pay higher STT on your F&O trading. That was quite misleading for the whole narrative of the budget. Correct. अगर वो उन्होंने नहीं बताया होता, मतलब शायद से उससे उतना ज़्यादा इनकम भी शायद नहीं होने वाला कंपेयर टू द टोटल इनकम विच दे आर अर्निंग. करेक्ट. तो दैट वुड नॉट बी देयर, then again it could have been the good thing overall. Because mostly जो F&O ट्रेडिंग होता है वहाँ पे कुछ सरकार ने बोला 90% समथिंग ट्रेडर्स पैसे लूज़ करते हैं. वेरी ट्रू. बट अगर वो लोग पैसे लूज़ कर रहे हैं तो टैक्स थोड़ा और कम कर दो ना. तो आप उसके ऊपर पैसे लूज़ कर रहे हो और वापस से टैक्स भी ले रहे हो इतना, तो फिर it is see one thing is they are saying it's a gambling. or a scene type of activity. Scene activity में it includes tobacco also. F&O is also there by tax. Correct.
सो लेट्स से फॉर एग्जांपल टोबैको का जो भी वो पैकेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है दिस कॉजेज कैंसर। उन्होंने बोला सेम चीज यहाँ पे लगा देते। हाँ, तो बिटकॉइन में भी लगा देते। ऑल योर ब्रोकिंग ऐप इफ यू ओपन अप दे विल शेयर विथ यू 90% ऑफ द पीपल लूजेस मनी एंड दे टेल यू दैट दिस आर द रिस्क। करेक्ट, 4 points आर देयर, वेरी नेगेटिव, जस्ट लाइक दैट कैंसर फोटो ऑन द टोबैको प्रोडक्ट। नाउ दे से दैट सिगरेट पे भी ज्यादा टैक्स लेते हैं, इसके ऊपर भी ज्यादा टैक्स लेंगे। आइडियली दे शुड हैव लर्नड कि सिगरेट पे ज्यादा टैक्स लेने से लोगों ने सिगरेट पीना बंद किया? नहीं किया। तो फिर एफएनओ पे ज्यादा टैक्स लेने से लोग एफएनओ करना बंद करेंगे, ऐसा कैसे अज्यूम किया? सही बात है। करेक्ट। हाँ, सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ? हाँ, सी 500 रुपये, मतलब जो एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहा है, हाँ, दे आर नॉट ट्रेडिंग फॉर $500 इफ दे वर ट्रेडिंग फॉर $500 दे वुड नॉट लूज आउट 1 लाख रुपी। एवरेज लॉस इज 1 लाख रुपी। तो उनको 500 रुपये का कुछ नहीं पड़ा। बेसिकली एफएनओ पर लॉट आप ट्रेडिंग करते हो अगर निफ्टी का, तो सम अप्रॉक्सीमेट 450 to 500 रुपीज़ का आपका कॉस्ट बढ़ेगा। नाउ थिंक अबाउट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। योर ब्रोकर इज मेकिंग 20 रुपीज़, दैट ब्रोकरेज इज अबाउट 20 रुपीज़ पर लॉट और पर ऑर्डर। टोटल दे मेक 40, द गवर्नमेंट मेक्स 800। The one who is providing you the platform, the one who is educating you, or the one who is actually providing you all the system, is making just $40. 40, yeah, okay. For buying 20 and for selling 20. Okay. No other cost. And the government, without getting involved, just by saying you are doing something wrong and that's why we are penalizing you, they are making 800 rupees out of your just one lot of trading in FNO. करना चाहिए नहीं करना चाहिए, it's a separate story. But where it got hit the most, now who gets the hit is the high frequency traders और arbitrage funds. मेरे को एक सवाल था कि मोस्टली ये सब जैसे राकेश झुनझुनवाला है वो जो मतलब थे, और उन सब ने जब चालू किया था तो सब लोगों ने एफएनओ किया ही होगा, वरना ऐसे पैसे बनते ही नहीं। करेक्ट, क्योंकि जो लेवल पे वो लोग पैसे कमाए वो एफएनओ से ही आते। वेल ऐसा हम सोचते हैं और समझते हैं, ये कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि उन्होंने वही चीज़ किया हो। फॉर एन एग्जाम्पल, ही इज हैविंग 3% स्टेक इन टाइटन। पर वो कब जाके, जब उनके पास इतना कैपिटल एलोकेशन हो गया उसके बाद उन्होंने किया होगा ना, उससे पहले जब कैपिटल लाने के लिए क्या? इनिशियली जब उनके पास पैसा नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा वेल्थ नहीं था, उस टाइम पे उन्होंने उतना स्टेक बाय किया हुआ है। ओके, करेक्ट। तो द स्टॉक विच यू पिक एंड इफ इट गेट्स मल्टी बैगर, पीपल से मल्टी बैगर, राइट? Multi-bagger is not just 1 or 2 stock. He has invested into DHFL also. We all are well aware of. Right? DHFL didn't do well. Probably, yeah, DHFL was only there. I might be wrong. एक बार आप fact check करेंगे इसका. He invested in DHFL probably, and that didn't do well because of the scams that or issues that came out. Right? तो हो सकता है multi-bagger find out करने में it is not all stock which will become multi-bagger. But एक या दो जो है ना, that gives you the whole wealth. The kind of wealth he has made with Titan. Lot many stocks are there. In fact, some other holdings are there from some of the big bulls into I'll not name anyone because फिर वो track होना चालू हो जाएगा. Cochin Shipyard or GRSE, this defense stocks. The guy, the people found this kind of opportunities even before the market started looking at it on a meaningful way. The money got multiplied in 10 times, 15 times in just 3 to 4 years. True. In fact, some of the stocks investment was there with respect to Adani Total Gas. Once upon a time it was available at 72. So this is where the fundamental investment or long-term investment, what we say, starts. In somewhere in 2019, Adani Total Gas got listed. Now Adani stocks available at 12 ka PE ratio, price to earnings ratio of 12 only. Industry is at much higher. Okay. But still Adani stock available at 12 PE as a Adani as a group. Correct. And that is available at 12 PE is like nothing. 72, it got listed. People tried buying it. There was buyer circuit, only buyers, no seller. Became 78. At 80, somewhere the good entry point people might have got. Now what has happened is, at that time they were into 4 city gas distribution only. Okay. Now their vision was much more broader to go into 50 city gas distribution. At 80 someone might have bought. Let's say for example, in 2020 this crash happened. 1 month before that,
I still remember 1 or 2 months before that it was at somewhere 200. From 80 to 200. Now people would say यार हो गया खत्म, मतलब 80 से 200 तो आ गया, अब क्या? But if you have a vision from 4 to 50 city gas distribution, a huge potential is available, the things would be very different. Like it went up to the levels of nearly 3,700. 3,700? And in the span of 6 years. 6 years also I'm saying on a higher side. Okay. Because 2019 हाँ. and this issues happened somewhere in 2024. Okay. So about 5 years. Okay. Now from 80 to 3,700, what kind of vision is required? It is required with who is running the business, हाँ. how this business can grow, all about quality. हाँ. At that time nothing was there on the balance sheet. सही है. People start with balance sheet. क्या रेशियो पे मिल रहा है, क्या करोगे जान के. First look at who is the promoter. You always try, see, this is what big bulls are also following. They first go by who is running the business. हाँ फंडामेंटल्स चेक करने का. Fundamental. वो सेम BYD वाला भी सीन था ना, जैसे वॉरेन बफेट ने BYD में इन्वेस्ट किया था. उनको टेस्ला में करना था, कर सकते थे, पर उनको बहुत ओवर प्राइस लगा था. और BYD अभी टेस्ला से ज़्यादा मॉडल सेल कर रही है. Exactly. So first विजन क्या है प्रमोटर का, what promoter can do, ability है या नहीं है. Second thing is about business. So qualitative चीज़ें जाती है. तो जो आपने बताया कि ये जो बिग बुल्स हैं स्टार्ट किया, they might have taken this kind of smaller bets. And then this bets gets converted into multiple time. This is a multi-bagger story. Okay. Right, from 80 to 3,700. I'm not saying some big bull was there in it or anything else, but this kind of lot of examples are there in their journey as well. क्रिप्टो करेंसी मोस्टली सबको, मतलब जो डार्क साइड जिनका बिजनेस है ना, वो सब क्रिप्टो को बूस्ट कर रहे हैं कि भाई क्रिप्टो अच्छी चीज़ है, कुछ बेनिफिट तो होता होगा ना. और मोस्टली मैं वो सोचता हूँ कभी कभी कि बिटकॉइन है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई वो पर्टिकुलर जैसे 10 लाख है तो 10 लाख ही निकलने वाले, उससे ज़्यादा नहीं है. तो वो क्या, वो डिमांड सप्लाई की गेम उस हिसाब से रह सकती है. बट शायद से ऐसा भी तो हो सकता है किसी के पास मेजोरिटी चंक हो तो फिर वो डिमांड को. दिस इज पॉसिबल विद गोल्ड एज वेल. गोल्ड इज ऑल्सो लिमिटेड. हाँ, correct. There are many people, when I say this, it's a controversial one. Okay. Because now people will, might come up and say gold can be made up in that, laboratory also. अभी चल रहा है. Like diamond. हाँ. But अभी gold बना नहीं है. तो जब तक वो बनता नहीं है, I am not in that camp to say that gold is unlimited. लैब का भी अलग होगा, डायमंड्स का भी जैसे लैब ग्रोन होता है उसकी प्राइस अलग होती है, और जो डायमंड होता है वो सेम गोल्ड में आएगा तो भी ऐसे आएगा. But knowing exact difference is very difficult when it's a lab grown. Okay. Because we only have one example to see that, lab grown diamond. हाँ. Correct, which has slashed the diamond prices by about 1/10 price पे that is available. So that's why right now gold के around speculations are there. It could be the lab grown. Okay. It has happened also in past. Okay. But it existed for microseconds in that gold form, and then it got changed into some other metal. Okay, makes sense. So इन्वेस्टमेंट के लिए मैं रिसेंटली चांदी, मतलब सिल्वर उतना हाई हुआ था और अचानक ही फिर सिल्वर आप देख सकते हो आदित्य कितना ड्रॉप, ऑलमोस्ट 40, मतलब 1 लाख रुपए का शायद से डीप आया था. From 4,18,000 it went and went down to 2,50,000 roughly. तो यार इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब why was that? Silver has always been speculative asset. If you want, you can check. Okay. Somewhere in 1980s. हाँ. Look at the silver price chart. Aditya, if you could just open up the TradingView website and have this silver prices in dollar terms. Okay. In 1980s, approximately, it went up. Okay. From roughly $5 to $50. What was the trigger? And then came down to $5. Again, the silver shortage. अच्छा, okay. Again, in recent time, now if you see in 2009, it was at about $9. Now if you see, 2009. Yeah. Correct. And it went up to $50. Look at the rally. Yeah. Then again from roughly 2011. 16 तक फिर लो आया, फिर 16 में थोड़ा. Exactly. वहाँ से look at the kind of drop. It came down from 15 to 50. Yeah. 15. Right. So from 15 again to 15. Yeah. Yeah, correct. $50 से $15. That is like massive crash. 85% crash roughly. रिसेंटली अभी भी जो क्रैश है ना उसमें मेरे बहुत सारे दोस्तों ने करोड़ों रुपए. And now the problem is why this thing have started. This chart technical analyst
Yeah. You will start like, silver has crossed the high of 2011. हाँ. But look at the people who invested in 2011, they've got exit somewhere in 2026. For 15 years, they were trapped in silver हाँ. in dollar terms. Makes sense. If you look at it in rupee terms, this kind of crash has been there. Slightly lower maybe because of the rupee depreciation. Okay. Correct. This is in dollar terms because if we go into... It's much more stable dollar. That's why we are using dollar. No. Okay. In case of silver, the trading generally happens in dollar terms. Okay. In international global market. समझ गया. Now, if you look at the 1980 was even more worse. It was very stable यार. मतलब अच्छा बीच में ओहो. Yeah. दिख रहा है 80s में दिख रहा है मेरे का. Shit bro, same This thing was happened. the kind of, yes. हाँ. From $4 it went up to 46. If you take a high, Yeah. it was because it's a monthly chart. 50 तक So, जा रहा है ऑलमोस्ट. yes. 48 समथिंग जा रहा है. हाँ. वहाँ पे ऊपर टॉप. हाँ. Yes. ओके. So from $4 to 48 and 3 again साल back के to अंदर 4. देखो ना 83 में तो सीधा डीप आ गया था उसका कुछ $4. Yes. वेरी सैड. So again, Okay. this is nothing but investment में there is one thing in Gujarati as well. हाँ. જે જેટલું ઉપર જાય એટલું જલ્દી એટલું પડે નીચે. हाँ સાચી. और अति नहीं गति नहीं. हाँ. Right. So basically, whatever is increasing in such a high way, see the volatility, when many people say highly volatile asset it is. So what volatility means? It goes up and it goes down. It's both side. गोल्ड में क्यों नहीं है ऐसा? Sorry. गोल्ड में ऐसा नहीं Gold है. also has the same kind of volatility as well. अच्छा. Take a look at gold. गोल्ड chart. का देखो तो. Again in dollar term. बिकॉज मोस्टली अपने बचपन से सबने ऐसा बोलो गोल्ड लेके रख दो क्योंकि घर पे वो गोल्ड का इतना ज्यादा क्रश क्या कहते हैं वो रश रहता है कि भाई गोल्ड ही लो. Gold में now okay, just before we go on to the conversion, 2010, take a look at the price. The high was around 2011 September 11 it was $1,900. From that it fell to somewhere $1,000. ओके. So 1900 to 1000, that is like 50% crash. या. Again, it went up from the people who entered into this in 2010, they have got exit actually in 2020. Okay. For 10 years, their gold return was 0. ओके. This is how we look at it. Okay. I'll give you a bit more into it. From 2010 to 2016, if you see, Yeah. the money went down by minus 50% ओह. in dollar terms. ओके. Now, during this period, Indian people, हाँ. as India, we always say the gold में उतना correction नहीं आता. हाँ. The reason is यहाँ पे the dollar was correcting. हाँ. The gold prices were correcting. On the other side, rupee was also depreciating. So when you are converting dollar to rupee, correct, or rupee to dollar basically. हाँ. If your currency has depreciated and you have invested in dollar terms, then your return is actually increasing. Okay. So this is the reason. During the same period, if you see the gold prices in India, हाँ. it didn't fall this much. Okay. Again, correction was there also. Okay. If you could open up the gold chart, now the gold future probably for the same term. Take a look. But more or less. Yeah. So this has been volatility in the Okay. gold prices as well. Okay. We can I can share the screenshot later. No worries. Yeah. So again, 2011 somewhere till 2015, this kind of correction was there also. But yeah, slightly lower correction than this. Okay. Problem was there. I mean, Okay. it's never except fixed deposits. Nothing goes in a straight line up. Okay. Right. It's always a volatility is there. Got it. एंड मोस्टली व्हाट डू यू रेकमेंड फॉर समवन जिनको डाइवर्सिफाई कितना करना चाहिए उनका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट इफ दे आर इन्वेस्टिंग लाइक अराउंड 10, 15 या 20,000 पर मंथ SIP कर रहे हैं ठीक है. तो उनको किस हिसाब से पोर्टफोलियो अपना मैनेज करना चाहिए. ओके. हाँ. सो इसको पहले अपन डिवाइड कर देते हैं. ओके. ऐसे लोग जिन्होंने मतलब रिसेंटली हाँ. कुछ एंट्री लिया है, जस्ट एंट्री लेवल. हाँ, न्यूबीज है बेसिकली. न्यूबीज है मार्केट में. एंड कुछ ऐसे लोग जो कि इंटरमीडिएट है या फिर एक्सपीरियंस्ड है. ओके. व्हाई आई एम डूइंग दिस? बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन मीन्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. और रिस्क एपिटाइट सबकी अलग रहती है. रिस्क एपिटाइट अलग है एट डिफरेंट एज एज वेल. ऑफ कोर्स. एंड विद इन दिस आई विल ऑल्सो हैव वन पर्टिकुलर डिस्क्लेमर. अच्छा. दैट इज अगर मैं लॉन्ग टर्म बोलूँ ना तो सब बोलोगे यार लॉन्ग टर्म करना है, कुछ भी करो, स्मॉल कैप में ही पैसा डाल दो. ओके. Even if you have higher risk appetite, again valuation always matters. There are a lot of time you might have invested in small cap.
ओके Even after staying for long term, the money in large cap or mid cap was made higher compared to small cap during the same phase after 7 to 10 years. ओके So again, at what valuation you are entering, it हाँ. always matters. Coming back to the topic around how the asset allocation should be. अगर कोई 22 साल का है पर्सन, हाँ उन्होंने सोचा कि मुझे स्टार्ट करना है. सही Start with the one rule with which I started, the rule of 25. ओके The rule of 25 says first 25% of your money हाँ must go for a long term investment. ओके I'm लाइक using the word- रिलायंस और वो सब जो आपको पता है कि भाई नहीं, लॉन्ग stocks नहीं, ओके stocks नहीं. अच्छा For me personally, I stayed away from the stock initially. ओके सो Even after knowing all this into the market, हाँ didn't went into that thing. अच्छा First 25% goes for long term. Second 25% goes for your emergency fund. ओके यू मेंशन अर्लियर लाइक 6 months or Yes. something you need to have Next 25% should be maximum for your EMI. ओके जहाँ पे expense है ना, that should be maximum kept. जहाँ पे investment है, that is minimum. Your minimum 25% goes for your long term investment, 25% minimum for your emergency fund, maximum 25% for your EMI, ओके and maximum 25% for your personal expense. okay so out of the income that you are generating per month Yes. okay so if suppose I'm earning 1 lakh rupees per month so 25 Perfect. 25 25, उस हिसाब से- 25, हाँ, 25. okay. Correct. अब प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? जब एक नया अर्निंग स्टार्ट होता है, जैसे ही अकाउंट में पैसा, सी 22 साल तक हमको पॉकेट मनी मिलता है. हाँ वेरी ट्रू पॉकेट मनी का हिसाब देना पड़ता है हाँ कि बोले यूटिलाइज हुआ तो कहाँ कहाँ हुआ, हुआ? और वो 1 लाख नहीं मिलता, नहीं वो 10,000 वो 12,000 ही होता है खत्म. और अभी एकदम से आने लगता है 1 लाख. हाँ सो दैट मेक्स अ डिफरेंस इन द माइंड सेट कि हाँ. बोले यार अब पैसा आ रहा है, अब क्या करूँ. हाँ अब क्या करूँ जब आता है ना, सो गुजराती में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्या बोलते हैं सेइंग है, पैसा ने पानी नहीं जैन ना वापरो. हाँ 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 वाई मनी इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द वाटर. हाँ Because if you don't plan your expense हाँ. or your investments or your money, हाँ. it will find its own way, just like water. अब देख लो, जितना भी पैसा आपके पास सेविंग्स में होगा, अगर आपने उसका एक्सपेक्टेड क्या करेंगे वो नहीं सोचा ना, वो कहीं ना कहीं पे और स्पेंड Use हो हो जाएगा. हो जाएगा. सही बात है यहीं घूमने चले जाओ ये ले लेते हैं छोटा मोटा एक्सपेंस हो गया एक्सपेंस हो जाएगा. क्रेडिट कार्ड भी आज के ज़माने में अरे वो तो नेक्स्ट लेवल है. सो अगर आपने पाई बनाया हुआ है रूल ऑफ हाँ. 25, ओके दिस इज इनिशियली रिक्वायर्ड. ये आप मेंटेन करो फॉर द नेक्स्ट 1.5 to 2 years. ओके You will get decent salary hike and also some responsibility maybe. Correct, if you are looking 22 पे हो आप, 24 25 पे कहीं ना कहीं पे शादी के बारे में, हाँ, दो हाँ, स्टेज ऑल्सो स्टार्ट्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है. आपका पाई अभी चेंज होना चाहिए. यू ऑलरेडी हैव द इमरजेंसी फंड. हाँ मिनिमम 50% शुड बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. 25% still 20-25% can be your EMI. 25% could be your expense. ओके अब अगर EMI किसी ने नहीं लिया तो it is not mandatory to take बट EMI. एवरीवन डज यार एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन तो EMIs आर द बेस्ट ऑप्शन Perfect. हाँ That is again इफ यू आर what is our बिजनेसमैन देन इट्स अ डिफरेंट थिंग expectation. हाँ Again, if I ask you the person earning, okay, let's take it in a base level. ओके If you are having, let's say iPhone, you are हाँ. purchasing it. Most of the iPhones, 70% iPhones are on EMI. वेरी ट्रू Correct. हाँ If you are earning 25,000 bucks of salary, why do you really need iPhone? नो 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 आई नीड अ माइक्रोमैक्स बजट तो माइक्रोमैक्स का ही होना बजट माइक्रोमैक्स होना चाहिए ना. बट दे आर बाइंग आईफोन्स iPhone. Why? हाँ. Because of EMI पे easily मिल मिल जाएगा. रहा है Why is it required? दे बोलते हैं they say हाँ status. स्टेटस फॉर श्योर मैं सिंपल पूछता हूँ, या 25,000 कमा रहे हो, हाँ. स्टेटस बना के दिखाओगे किसको? हाँ बराबर है करेक्ट. और 22 की एज पे हाँ 25,000 कमा के स्टेटस बताना भी किसको है? फ्रेंड्स के सामने फ्लैक्स करना और कुछ और नहीं. कुछ नहीं तो वो इमोशन है. मतलब फ्लैक्स करना, ग्रीड, ऑल दिस आर हाँ. इमोशंस. आई बी वेरी रॉ एंड ब्लंट अराउंड दिस. ट्रू करेक्ट. सो कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, कमेंट में बैकलैशेस भी आएंगे, बट ठीक है, दैट्स फाइन, दैट इज अ काइंड ऑफ फैक्ट. हाँ तो 25,000 कमा के ये करने का ज़रूरत नहीं नहीं है. है करेक्ट. बेटर यू शुड लुक फॉर व्हाट शुड बी योर लॉन्ग टर्म गोल्स. देयर इज वन थिंग ओनली इन योर लाइफ which no one thinks at the age of 22, for which no one will give you the loan. ओके कोई आपको लोन नहीं देगा. एनी एक्सपेक्टेशन ब्लंट कि बोले यार ये चीज़ के लिए कभी सोचा भी नहीं और इसके लिए कोई लोन भी नहीं मिलेगा. मतलब घर के लिए या फिर घर के लिए लोन मिल जाएगा. मतलब एजुकेशन मिल जाएगा करेक्ट.
कुछ इमरजेंसी आ गई तो फिर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन मिल जाएगा आपको। हाँ, तो ऐसी तो कौन सी चीज़ यहाँ पे लोन, सारी योर चीज़ों में मिलता है। रिटायरमेंट, अच्छा, उसके लिए लोन ही नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट पे कौन लोन देगा? नहीं, सही बात है। 50 पे हो, हाँ अब लोन लेने के लिए जब आपको 5 साल 7 साल का 10 ईयर मिलेगा मैक्स लोन का, हाँ हाँ हाँ। उसके लिए आपको कोई लोन ही नहीं मिलेगा। और आपका एक्चुअल एक्सपेंस इज योर रिटायरमेंट विच नो वन टॉक्स अबाउट। वो सबसे हार्डेस्ट टाइम होता है मोस्टली, Hardest कैसे time. प्लान किया वो डिपेंड, वरना Exactly. एंड बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इनफैक्ट आई ऑल्सो कम इन टू दिस थिंग, हाँ. हाउ द लाइफ स्टेज वर्क्स फॉर द Okay. फाइनेंस। ओके। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आपने 25 का हाँ. किया हुआ है हाँ। तो इट्स वन गुड थिंग, फर्स्ट थिंग विच शुड बी देयर। एंड जो मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट कहाँ से करें फॉर 22, हाँ। योर स्टार्ट शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड हैव इज योर टर्म प्लान। ओके। बस अगर टर्म प्लान नहीं है ना, हाँ तो आप मतलब जो भी आपने किया, जो भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए करोगे, हाँ. वो कुछ काम का नहीं है। यू मीन लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस, Okay. एंड दैट टू पर्टिकुलरली टर्म प्लान। ओके व्हाई आई एम पुशिंग ऑन टर्म प्लान? ओके। लेट्स से आपने कुछ प्लान किया दैट आई नीड सर्टेन फंड्स फॉर माई रिटायरमेंट, सर्टेन फंड फॉर ट्रैवल, प्लान कर दिया। हाँ बट अगर आप ही नहीं हो, यू वर द ब्रेड अर्नर फॉर योर फैमिली, you are not there, what will happen to all those plans? हाँ. Question mark. सही है। What will happen to income? Question mark. What is going to happen to your family? बिग क्वेश्चन। Now people will say, हाँ हाँ। now people will say यार ये इमोशन कार्ड प्ले कर रहा है। मैं इमोशनल कार्ड प्ले नहीं कर रहा हूँ, ऑन अ लॉजिकल बेस पूछ रहा हूँ नहीं नहीं, सही बात है। कि क्या करोगे? पैसा तो नया नहीं आ रहा, आप बोलोगे कि वो लोग को जो करना है वो करेंगे। कोई ऐसे मतलब ब्लंटली बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, रियलिटी वो नहीं होता। अभी 35-40s में मतलब बहुत अर्ली एज में लोग अभी लोग का डेथ हो रहा है। हाँ यार। पोस्ट कोविड पर्टिकुलरली हमने सुना है। हाँ करेक्ट। सो फर्स्ट इज योर लाइफ इंश्योरेंस। द सेकेंड थिंग दैट यू रिक्वायर फ्रॉम दैट फर्स्ट सैलरी इज योर हेल्थ इंश्योरेंस। ओके। आप बोलते हैं पापा के पास है, वो पापा के साथ है ना, वो चेक करो कि वो कितने का है। अगर आपका, मम्मी का और पापा का तीनों का मिला के अगर 5 लाख का है फ्लोटर पॉलिसी, ओके इट इज इनसफिशिएंट। ओके। किसी एक को जरूरत पड़ा तो 5 लाख तो यूं यूटिलाइज हो हाँ, जाएगा। आप ही क्या बेड्स और सारी चीज़ आप देखो, वो करने जाओ तो हो ही जाता है। आप नॉर्मल हॉस्पिटल में जाओ ना, हाँ तो भी हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। करेक्ट। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दिस एक्सपेंसिव वंस। वेरी ट्रू। और अगर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए कहीं जाना पड़ा, देन यू विल गेट टू नो कि 5 लाख का कुछ मतलब इन दैट वे इट इज अ वैल्यूएबल 5 लाख रुपीज, बट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है। सर्जरीज यूजुअली कॉस्ट 2.5-3 लाख रुपए तो वही हो जाते हैं, प्लस रूम और वो सब एक्सपेंस आप वो तो 5-10 additional साल। है। हाँ हाँ हाँ। तो यू शुड हैव योर ओन हेल्थ इंश्योरेंस। एटलीस्ट टेक केयर करो कि अगर कोई भी क्लेम आता है तो 10 लाख एट अ बेस लेवल, आई एम सेइंग 10 Bare लाख minimum. तक का आपको एक्सपेंस मिल जाए पर पर्सन। ओके। करेक्ट। कुछ लोग बोलेंगे मुझे 1 करोड़ का चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि 1 करोड़ का आप इंश्योरेंस लो, वो इनकम वाइज Base आप कर policy. सकते हो ना फिर। नहीं, उसके लिए और ऑप्शंस है। अच्छा। 1 करोड़ का बेस पॉलिसी लेने का ज़रूरत नहीं है। ओके। आप 10 लाख का एक बेस प्लान लो, हाँ 90 लाख का टॉपअप पॉलिसी ले सकते हो, अच्छा। विच विल कॉस्ट वेरी लेस। 1 बराबर। करोड़ का जो प्रीमियम आता है, हाँ। उसके शायद से, आई एम नॉट एग्जैक्ट वन बिकॉज एज नहीं पता, शायद से उसका 10-15% प्रीमियम में प्रॉबेबली वो 90 लाख का एडिशनल हो जाएगा, तो आपका 1 करोड़ तक का कवर अप हो सकता है। बट अगेन इफ दैट इज नीडेड, तो बोलो पहला 10 लाख का तो होना चाहिए। होना ही चाहिए। द सेकेंड ओके थिंग, ओके एंड देन स्टार्ट्स योर इमरजेंसी फंड। ओके। Your emergency fund is all about your fixed expenses like this life insurance policy premiums, मेक सेंस। health insurance policy premiums, ओके। your regular expenses. Let's say you say that 22 का एज है, तो मंथली फिक्स एक्सपेंस क्या होगा? मैक्सिमम 7-8,000 का कुछ ना कुछ पर्सनल एक्सपेंस होंगे, या तो 10,000 का होगा। ओके। तो आपके पास फॉर द नेक्स्ट 8 to 9 months में ट्राई टू मेक अ कॉर्पस that yes, you are 6 to 8 months, you have enough chunk of money such that you can maintain that your lifestyle. ओके। Correct. हाँ At least ये होना चाहिए. हाँ। Then comes your long term investment, and this is where many people start taking highest risk, because people say highest risk is equal to highest return. There is other way around also. जितना ज़्यादा रिस्क क्या होता है एक्चुअली? रिस्क का मतलब क्या है आपके लिए, या फिर इन जनरल? रिस्क बेसिकली वही है कि जो चीज़ आप पैसे डाल रहे हो सबको, तो रिस्क उतना है कि भाई वो शायद से ज़ीरो हो सकते हैं। तो Correct. आपका बेरिंग कैपेसिटी कितनी है? ओके। सो रिस्क 3 है। रिस्क का एक्चुअली 3 वर्जन है। ओके। एक वर्जन है आपने एक्सपेक्ट किया था 12% रिटर्न मिले, हाँ बट आपको मिला 20%। हाँ
आपने एक्सपेक्ट किया था वो तो नहीं हुआ ना, हाँ. तो दैट इज ऑल्सो रिस्क. जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं हुआ तो दैट इज ऑल्सो रिस्क. आपने एक्सपेक्ट किया था 12 मिलेगा बट आपको मिला 5, दैट इज ऑल्सो रिस्क. एंड आपने एक्सपेक्ट किया था 5, मिला -5, दैट इज ऑल्सो रिस्क. हाँ. तो हाइएस्ट रिस्क मीन्स पीपल से दैट आई विल अर्न हाइएस्ट रिटर्न ओनली. इट इज नॉट नेसेसरी. टेक अ लुक एट सिल्वर फॉर दैट मैटर. हाँ. लोगों ने एक्सपेक्ट किया था और आज भी आर्टिकल्स है ही, ये तो 7 लाख होने वाला है, 10 लाख होने वाला है. होगा कि नहीं मुझे नहीं पता. हाँ. मुझे इतना पता चलता है कि 4,18,000 में जिसने लिया उसका आज 2.5 लाख हो गया. हाँ. जीना तो आज के टाइम में ही है. जीना तो आज फिर 5 साल 10 साल बाद लिटरली आई हैव गॉट कॉल्स कि मेरा इमरजेंसी फंड है, हाँ. ये कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है और अपने को इमरजेंसी वैसा तो है नहीं, मैं सिल्वर में डाल दूँ, गोल्ड में डाल दूँ अभी के लिए, वो तो सेफ ही है ना. हाँ. व्हेन दिस मच हाई वॉलेटिलिटी इज देयर, हाउ दिस थिंग्स आर कंसिडर्ड एज सेफ. करेक्ट. नहीं, सही बात है. So your emergency fund should be maybe into debt funds or Okay. arbitrage fund where there is very less chance of losing money. बेसिकली बॉन्ड्स और वो सब जो गवर्नमेंट Bond again bond में लॉक इन आता है. तो इमरजेंसी फंड में ये चीज़ है कि जब चाहिए तब मिलना भी चाहिए. मेक सेंस. कुछ लोग बोलते हैं मैं एफडी कर दूं. एफडी में भी सेम. आप ड्यूरेशन एक फिक्स करोगे 1 साल का. हाँ. आपको इमरजेंसी आया 3 महीने में, हाँ. आपने विड्रॉ किया, क्या होगा? पेनल्टी. करेक्ट. बेसिकली वी कॉल इट पेनल्टी. आइडियली वो इंटरेस्ट में लॉस आता है. तो फिर बैंक में ही रखना अच्छा है फिर तो, मतलब 4% जो भी. मेनी अदर ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड के बहुत सारे डेट फंड्स है, लिक्विड फंड्स है. ओके. मैं मेरा जो है हाँ. माई ओन मनी इज गेटिंग मैनेज देयर एज ए इमरजेंसी फंड. जब भी चाहिए आई कैन विड्रॉ. ओके. प्योर लिक्विड में भी हो सकता है विड्रॉ. करेक्ट. सो दोज काइंड ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल बट होना चाहिए ऐसा कुछ एक प्लानिंग. सेकेंड आपका प्लानिंग होना चाहिए दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म. व्हेन आई से लॉन्ग टर्म तो हमने बात किया रिस्क लेते हैं. हाँ. आप रिस्क लो हाँ. बट डाइवर्सिफाई करके. ओके. मे बी लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप. करेक्ट. देन कम्स द स्मॉल कैप बट मे बी एट अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज कौन से वैल्यूएशन पे वो नहीं पता. सो अगेन नॉट अ इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बट इस तरह से एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. देन कम्स योर EMI. अब आप बोलोगे स्टॉक कहाँ गया? स्टॉक्स में वो पैसा आप इन्वेस्ट करो क्योंकि स्टॉक्स में नहीं पता कि कब क्या प्राइस होगा. हाँ. 5 साल में डबल होगा, 1 साल में डबल होगा या 1 साल में 5 गुना होगा, वो किसी को नहीं पता. अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक आपने लिया था, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया 12 साल के लिए या 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, वो 1 साल में 5 टाइम्स हो गया. अब क्या करोगे? वहाँ से निकाल के हाँ. कोई और स्टॉक. हाँ. वो स्टॉक में भी आपको अच्छा रिटर्न बना. हाँ. कोई और स्टॉक. हाँ. एक स्टॉक ऐसा है आ सकता है जो पूरा सब ले जहाँ पे पूरा सब ले जाएगा. हाँ. हाँ. आप बोलोगे मैंने तो 5 साल में 0 हो गया. हाँ. तो इससे बेटर है खुद स्टॉक पिकिंग करो, डाइवर्सिफिकेशन ना लो, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाओ. उससे बेटर है ना हाँ. किसी और फंड में डालो जहाँ से मेरे को 35-40 स्क्रिप्ट का पोर्टफोलियो मिलेगा, डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा. 2-4 कंपनी डाउन है पर दूसरी अप है तो उसी हिसाब से एवरेज आउट हो जाता है. एवरेज आउट हो जाएगी. करेक्ट. सो दैट्स व्हाई आई सेड. एंड सेकंड थिंग, इक्विटी मार्केट रिक्वायर्स योर रेगुलर 24/7 यू शुड बी इन द मार्केट. तभी जाके इट इज़ गुड टू टेक एक्सपोजर इनटू मार्केट. वरना म्यूचुअल फंड सही है. Absolutely yes. In fact, there are a lot of advisors like me हाँ. who are in front of the screen. हाँ. Even if my own majority of the money, 70-80%, still into MF. Reason being, market के सामने हूँ मैं. हाँ. मना नहीं कर रहा हूँ. Managing the my own portfolio. करेक्ट. मेरा खुद का जो पैसा है वो मैं मैनेज कर ही रहा हूँ. हाँ. बट अगेन मुझे पता है कि मेरा रीच जो है वो कितने कंपनीज में, बिकॉज एट ए इंडिविजुअल लेवल यू कैन नॉट ट्रैक 6,000 कंपनी. देयर आर 6,000 कंपनीज लिस्टेड. करेक्ट. तो आप अगर पर्सनली भी कर रहे हो तो वो एक लेवल के बाद कर सकते हो, नॉट एट द इनिशियल स्टेज. वंस यू आर सीजनड इन्वेस्टर मीन्स ये 2-3 साल निकल गए, यू हैव अ गुड चंक ऑफ सैलरी नाउ, देन द नेक्स्ट स्टेप्स कम्स इन वेर इन यू आर एक्चुअली लुकिंग आउट फॉर योर गोल प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म. 22 पे चालू हुआ था बट इसको अभी डिटेल में थोड़ा जाना है क्योंकि जहाँ पे सर्टेनिटी बढ़ती है, मे बी 2-3 ईयर्स में मैरिज होगा, नेक्स्ट जनरेशन का प्लानिंग होगा, नई कार लेनी है, राइट. सो दोज थिंग्स स्टार्ट्स अप. एंड आपका जो फर्स्ट SIP किया था ना, इवन माई ओन फर्स्ट SIP इज फॉर माई रिटायरमेंट. बराबर. सब चालू इन्वेस्टिंग वहाँ से ही करते हैं ना कि भाई रिटायरमेंट के लिए सब होना चाहिए. ये बात करते हैं. हाँ. वन इज जस्ट फॉर सेइंग. हाँ. ट्रम्प बोलते बहुत कुछ है. हाँ.
वो करने पे आते हैं तब पता कुछ ही चलता चीज़ है। होती है। हाँ, सही बात है, सही बात है। सेम ऐसे यहाँ पर भी सब बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ रिटायरमेंट के लिए, बट जैसे ज़रूरत पड़ा ना, यार एक काम करो, अभी के लिए उठा रहा हूँ, हाँ। रिटायरमेंट तो अभी 20 साल बाद है, तब तक कर लेंगे कुछ ना कुछ। वो चीज़ नहीं करना है। कहीं पे अगर लिख दिया कि बोले ये चीज़ रिटायरमेंट के लिए है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स या उनके साथ जो पैसा बनाना जो लॉन्ग टर्म का था वो इसी वजह से बना। उनको अगर आप मतलब कभी भी डिस्कशन होना पूछोगे आप, वो आपको बताएंगे कि यार ये पैसा मैंने बचाया था बच्चों के लिए, और वो आज भी बच्चों के लिए ही है। लॉक एंड की कर दिया, खत्म। ओके, कितना भी उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ ना, उन्होंने वो पैसा नहीं उठाया, मैनेज किया कुछ ना कुछ कर गया। नाइस, करेक्ट। सो फर्स्ट थिंग वो चीज़ है। जब आप सीजन इन्वेस्टर हुए तो आपके लिए रूल चेंज होना चाहिए। देन इट बिकम्स 50-25-25। 50-25, ओके। मिनिमम 50% शुड बी योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके। Next 25% should be maximum your EMI. Okay. And next 25% should be maximum your household expense. Okay. Now, sorry. Yeah. यहाँ पे लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि यार मेरा हाउस होल्ड का एक्सपेंस इन्फ्लेशन के साथ बढ़ेगा नहीं। सर मैं 25% बोल रहा हूँ ऑफ योर इनकम, तो अगर आपका इनकम बढ़ा है तो बाय डिफॉल्ट उसमें 25% आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस बढ़ाने के लिए जगह बन चुकी है। सो पहले आप 1 लाख रुपए कमा रहे थे, उसका 25% दैट इज 25,000। अभी आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो तो उसका 25% दैट इज 50,000। करेक्ट। सो दैट थिंग कैन बी टेकन केयर ऑफ। इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड है। आपकी लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होनी चाहिए। सही है। मैं सिंपल चीज सोच रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट ही करना, वैसा नहीं है। पैसे फिर ऊपर नहीं ले जाना, पैसे ऊपर नहीं लेके जाना है। हाँ, बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि यू ओनली लिव वंस करके बोले जो 2 लाख कमा रहा हूँ 2 लाख खरीद दिया, वैसा नहीं। दोनों कस्टमर बहुत जरूरी है इकोनॉमी के लिए। एग्जैक्टली दोनों जरूरी। हाँ, कंजम्पशन नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट का क्या करेंगे। सही बात। ट्रू। सो देन इट कम्स 50-25-25। अगर ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं ना, आपका टर्म प्लान हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट पूरा हो गया। गॉट इट। बट अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो ओके। और ऑन एन एवरेज ये इनके लिए है कि जिनके पास अच्छी नेटवर्थ है, या फिर कोई भी आपके साथ एनरोल कर सकता है, या कैसे रहता है इसके अंदर? सो एनरोलिंग विद अस इज नो, वी आर नॉट इन दैट मोड दैट इफ दिस इतने मच पैसे मनी इज होंगे ओनली तो ही, ऐसा नहीं है। बराबर। We can help you out in any of the case, whether you want to start with 1,000, 2,000, Okay. whether you have 5 crore, 50 crore, 500 crore. We are okay Gotcha. with all the amount. Okay. Of course, yes, the kind of risk appetite is there with 5 crore or the 50 crore is going to be very different from the person having 1,000 or 2,000 rupees SIP or something. Makes sense. So we are having retail client base to HNIs, to many of the corporates also. Okay. And even some are there who are the leading corporates of India as well as our client. Okay. Yes. So why does a corporate invest basically? मतलब उनको उनका बिजनेस में तो वो रीइन्वेस्ट नहीं करेंगे। Okay. So first thing is they need a liquidity. See, Achha. when you are running a business and you say that I am investing in my own business. Now you have invested. Can you really take out the money the day you want to? No, basically not. Exactly. You might have given some goods on credit, or you might have some services which are provided, which will have 90 days or I can 180 sell my days. stocks though, right? Yes, that is possible with the stocks Yeah. investments as a separate investment category. I will be listed. Okay, you company, mean na? to say the inventory? You mean to say? No. I'm saying that if I'm a corporate and suppose a 500 crore company, then I'm listed in BSE or whatever. Then I can, if I'm in some rush or something like that, I can share my sales, or I can leverage it to get some kind of Get money. some more money. Yeah. Okay. So let's divide it into 2 parts. Yeah. One is what you are saying, that as a part of investment. Let's say for example Reliance is there. Yeah. You say that why Ambani ji invest in other markets? Why not to buy his own stock? Own shares. Yeah. And second one is he's investing that money into the business to grow the network of Reliance Jio. Okay. Let's say He's for example. diversifying. That's what. Diversifying. Okay. So when they are investing into Reliance Jio to grow the network, Yeah. then it is not a liquid money. Once it goes in, it will come out, but over the time it will take longer time. So that diversification is not there. Same goes with his ownership into Reliance stocks also. You might have very high confidence in your own company, but again, single company owning that, and you don't have a diversified portfolio. Okay. So to diversify the risk, you must invest in the other stocks also, or other mutual funds also, or maybe in some other way. Got it. Yes. So mostly if किसी का स्टार्टअप है, आप ऐसा सीन हो के
मतलब स्टार्टअप्स में भी सब एग्जिट बहुत अच्छे ही लेते हैं, 100 करोड़ एग्जिट, 200 करोड़ एग्जिट। तो मोस्टली आप ऐसा मतलब होता होगा स्टार्टअप ओनर्स में कि बेच के फिर इन्वेस्ट कर दिया थोड़े पैसे और फिर वापस स्टार्टअप दूसरा में चालू कर दिया। तो रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाता है उनका, 50% पैसे जो एग्जिट हुआ वो आपको दे दिया, किसी और को भी दे दिया, तो उस हिसाब से सेफ्टी रहता है। और 50 का वो उस हिसाब से दूसरा बिजनेस चालू करते हैं। They can do it. So, see, this is again the way where you are booking up the profits. Everywhere, wherever you are investing, it's never like you keep on investing till the time you need money. It also comes to the stage where you need to book your profits. Now, the problem starts when the psychology comes in with booking up the profits. Okay. Corporates are very sorted because they have some people around them who are into the finance, or they have their own mindset. So basically some advisor is there, or they have their own experience, right? Through which they have that much knowledge that they can decide when to book the profits. Makes sense. Okay. Yes. So mostly when you're saying that corporates do invest in other companies, so suppose Apple और वो सारी बड़ी कंपनीज भी करती होंगी या S&P 500 लेके उनके पास स्टॉक्स होंगे थोड़े ऐसे? They might have. बिकॉज वो तो बहुत ही कैश, मैंने सुना है तो एप्पल पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश पे लेके बैठती है। सेम वॉरेन बफेट भी ऐसा करते हैं कि उनको जब भी लग रहा है कि मार्केट इनस्टेबल है या अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो सिर्फ कैश रखते हैं बैंक में, फिर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। इज इट ट्रू? करेक्ट, yes, very true. So in fact, let's, as you have mentioned about Warren Buffett, the god of the investment, or we would say, we always kind of listens to his we on idolize a regular him, so basis. 100%. He is also good at profit booking. But with this, I also mentioned he has invested into the Google very recent time or late in the cycle when the price of the Google already went up. Okay. After that, he invested. Okay. So now, what would you call him? Is he good at investment or bad at investment? Kind of bad. Kind of bad because he invested at very certain valuation or very late. Yeah. Now the problem is we all have one mindset that whenever I sit in the train must start. In case of stock, it doesn't happen like that. Okay. You sit in the train, wait for the right moment, and then the train will start. Okay. But now for that particular thing, Warren Buffett has shared one thing, that he does not regret not investing into IT earlier because he did not understood the business. Not an exact quote, but this is the kind of quote he has mentioned. True. Now he misses the bus. That is not important. Important is he has invested in the Google when he understood the IT business. The overall industry, yes, makes sense. Yes. सेम चीज़ वो AI में भी हुआ था कि AI में भी बहुत लोग रिलेक्टेंट थे कि भाई कितना बूम करेगा कितना नहीं करेगा, तो जिसको समझ नहीं आ रही थी वो बोल रहा है कि लेट्स टेक, मतलब थोड़ा वेट करते हैं। सेम बिटकॉइन में भी ऐसा हुआ था, क्योंकि बिटकॉइन भी जब आया था तब लोग मतलब वो फोमो में थे कि ले लो। अभी 50% प्राइस ड्रॉप हो गई बिटकॉइन की। Correct. इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट? Okay. So if you ask me as a financial person, everyone has a thought process. I have a clear thought process. I would not be investing anywhere which is not regulated by Indian government. But is Indian government foolish kind of to do that thing, same thing? Because सारी जगह आप देखो सबने लीगलाइज कर लिया। यूएस खुद बोल रहा है, ट्रम्प बोल रहा है मैं खुद की कॉइन निकालूंगा, सारी चीज़। करेक्ट। हाँ। सो उन्होंने इनफैक्ट खुद का कॉइन निकाला भी है। हाँ। दे हैव देयर मीम कॉइन्स। ओके। Correct. Trump coin and the Millennia coin. Right? Okay. Now, I'll share one fact around this. Okay. He made such the day he launched this coin just after his presidential election. Yeah. The coin shooted. And if it is owned by Trump only, then it could have increased his net worth by about 50% approximately. 50%? His net worth. Oh, his net worth will be 10 billion something. Yeah, exactly. So do you think this thing is possible in any of the business or anywhere? Or anywhere if you're making the money? No. Is it possible on a logical basis? पर वो इन्फ्लुएंस है ना, इलॉन मस्क के पास डोजकॉइन के साथ भी उन्होंने यही किया था कि उनके पास इन्फ्लुएंस है तो वो कर सकते हैं। Exactly. So do you really know who has the influence over the Bitcoin? No. Or Doge or Trump coin? नहीं। No. How many cryptos are there in the market? Many यार। More than 20,000. मेरे को सिर्फ इथेरियम पता है, बिटकॉइन पता है, और कुछ पता नहीं है। Exactly. Okay, 17 Jan को लॉन्च हुआ, 3 days before. Okay. Yes. Makes sense. So is he smart about it? ऐसा करके मतलब ये फिर वो स्क्रूटिनी में नहीं आते? First thing, no one knows who has actually issued it. अच्छा, तो वो ट्रैक तो हो सकता होगा ना? Well, probably होना तो चाहिए somehow, but अभी तक नहीं हुआ. That is also a fact. शायद से वो पावर में से निकलेंगे उसके बाद पॉसिबल है। तो जीना भी कितना है उनको अभी। मतलब बच्चों को दे के जा रहा हूँ। Yes, absolutely. So
at the end of the day, one thing is there. Yeah. करेक्ट, दैट 20,000 प्लस क्रिप्टो करेंसीज है, उसमें से हम जानते 3 के बारे में. हाँ. एंड टू वन मोर फैक्ट, 80 to 90% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ क्रिप्टो इज देयर विद जस्ट 2 coins, बिटकॉइन एंड योर इथेरियम. सही है. बाकी सब 19,998 वो 10% में आ गए. बराबर है. अब बड़ा पैसा कहाँ बनेगा, लोग ये पूछ रहे हैं. मैं सिंपल पूछ रहा हूँ यार, बिटकॉइन का नाम जो है, मतलब समवेयर इन द फाइल्स राइट नाउ एप्स्टीन इज आल्सो गोइंग ऑन. दिस एप्स्टीन वाज द वन हु वाज डिसेंट्रलाइज्ड. वो उनको बोल रहा था कि भाई हो सके उतना रखो. नहीं, ही वाज द वन हु वाज वी कैन से वाज व्हाट वी कैन से, ऐसा प्रिटेंड कर रहा था दैट ही इज द सतोशी नाकामोटो. अच्छा. नाउ द क्वेश्चन मार्क इज हु इशूड इट एक्चुअली. सो व्हाट वाज द बेस बिहाइंड क्रिप्टो? The base was they want to replace the fiat currency. हाँ. Who issues the fiat? Your central bank. हाँ, US. So you mean to say you don't want to trust your central bank, but you want to invest in some other currency which is alternate to the one which is issued by central bank, and in which no one knows who really issued it, who is really backing it. So in my personal opinion, it is still, like it is not even blurred vision right now. It is completely black. So when you are investing in crypto, it is purely speculation, and that is how Indian government treats it. Indian government has said we don't want to regulate it, but when you are investing in crypto, we need 30% tax. So 30% tax is there on gambling and speculation. So your government themselves are saying that it's a speculation. Then why should I treat it like an investment? That's makes sense. पर मोस्टली अपने जो घर वाले सोचते हैं कि भाई गोल्ड इज अ गुड एसेट टू बाय. मतलब लोग क्या ज़मीन में विश्वास करते हैं, लैंड ले लो दिख रही सामने, गोल्ड ले लो दिख रहा है सामने, स्टॉक्स. तो स्टॉक्स मेरे घर पे भी अभी सब मैं करता था, तो बोलते स्टॉक्स में क्यों करना है, क्योंकि उन्होंने वो डीप देखा हुआ, उन्होंने हर्षद मेहता वाला वो देखा, उनको पता है कि क्या सीन होगा, तो उनके दिमाग में वही रहता है. करेक्ट. तो इज इट अ गुड थिंग टू बाय? I was going through one of the book and which I would recommend everyone should read, The Psychology of Money. है क्या वहाँ पे? हाँ, perfect. In that there is one chapter which was about when you are born, it decides where you will invest. So when you are born means if you are born somewhere in 1970s, हाँ, सिर्फ मैंने वहीं पढ़ा था. You will be investing more into safer asset. But if you are born somewhere in 95 to 2000, you will be more inclined towards stocks. सही है. Reason. The people who were born in 1970s, it's not their mistake. It's just that market was like that. when they actually got matured, started earning some money. Let's say you were born in 1970s. Yeah. You would be about 20 to 23 years. Yeah. You would just be starting to earning, right? And you will be investing your money. Yeah. When you invested your money, and then the Harshad Mehta happened. Then you lost all your savings, and then after you associate that के stock market तो बहुत खराब चीज़ है. खराब चीज़ है. वो एक mindset बन गया. हाँ. If you are born somewhere in 1995-97, बूम देखी आपने क्या देखा? 2020 के बाद में ही आपके पास पैसा आना चालू हुआ. वो आपने इन्वेस्ट किया. The market went up suddenly. In the last 2-3 years, particularly 2022 till 2024. सही है. This period, 2.5 year. So you have seen that boom period only. Correct. सो क्रैश देखा ही नहीं है. सो अभी का इनफैक्ट जो रिसेंट जितने भी नए डिमेट अकाउंट्स ओपन हुए हैं उन्होंने क्रैश नहीं देखा. तो इसीलिए जो है वो एक्सपेक्टेशन क्या है रिटर्न्स के? 22%, 23%, दैट इज द एक्सपेक्टेशन. सही है. राइट. सो इट मैटर्स व्हेन यू आर बॉर्न. हाँ. करेक्ट. और मोस्टली मेरे को ऐसा लगता है ना कि जैसे मतलब मैंने भी उस चीज़ पे इन्वेस्ट, मैं 18 का था तब से कमाना चालू किया था, फिर छोटे मोटे पैसे इन्वेस्ट कर रहा था स्टॉक मार्केट में. कोविड हुआ जो मिला ना, तो मोस्टली मैंने एक चीज़ सीखी तब कि जो जिनके साथ में इन्वेस्ट करता था ना, वो लोगों ने सीखा कि भाई जो डीप होता है वो अच्छी चीज़ है, ख़राब चीज़ नहीं. क्योंकि जब हमने भी 18 का होते कुछ ऐसा होता है तो अपने को लगता है यार मार्केट गिर रहा है, ये गिर रहा है, सारे पैसे मेरे सेविंग चली गई, तो बोला अच्छा है ना थोड़ा और बाय करो, एवरेज आउट करो कि उससे अच्छा फ्यूचर में 2 साल में रिटर्न मिलेगा. और 2 साल में जो मिला वो मज़ा आ गया. करेक्ट. एब्सोल्युटली. एंड इनफैक्ट आई हैव आल्सो पर्सनली इन्वेस्टेड इन सम ऑफ द स्टॉक. ओके. Which fell from 80 rupees to 20 rupees during this COVID crash. Okay. And right now it is at somewhere near to 800.
from 20 to 800. Now the people who say 20 to 800 would be very amazed यार, क्या मतलब क्या वो stock एकदम picking सीजन्ड capacity है? इन्वेस्टर होंगे जो उन्होंने किया होगा ना. बट जो 80 से 20 में मैंने पेन लिया है, हाँ, I mean हाँ. looking at your money, you know, your एवरीथिंग इज रेड. invested आपको some सोच money. है कि हाँ यार. Exactly. So that kind of patience is required, and this 80 to 800 हाँ. is the journey of about 10 years. ओके. वो 10 साल में हुआ है, हाँ. एंड उसमें मैंने 1/4 भी देखा. Now it is 10 times. ओके. Correct. सो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी डू यू यूज? बेसिकली आप लॉन्ग टर्म का सोचते हो या कुछ स्टॉक्स आप ऐसे बाय करते हो 1-2 साल में एग्जिट, कुछ स्टॉक ऐसे के 5 years, कुछ स्टॉक ऐसे 10 years, ऐसा कुछ होता है कि कैसे? Okay. So firstly, it goes with asset allocation. ओके. First, it always starts with emergency fund. ओके. Well, you always keep your emergency fund aside. You 3 are not months, 6 thinking months? about ROI. ओके. Let it be as it is. Now, people have, you know, that common mindset that your 3 to 6 months expense हाँ. should be there. हाँ, जॉब चली जाए, ऐसा कुछ चले जाए तो 6 महीने तक मेरे को दूसरी मिले तब तक. That is, you know, see, lot of thing on YouTube हाँ. is about generic advice. हाँ हाँ हाँ, सही बात है. It is never a precise advice. I'm just sharing up how I look at it. ओके. Let's say for example, you have some good net worth. हाँ. Correct. Let's say आपका net worth आज already है 10 crores का. गॉट इट. Can you take decent amount of risk? Answer is yes. But you say in the next 6 months, you are planning some trip for Switzerland. Your monthly expense is hardly 50,000 for an example, or 1 lakh rupees. या. Correct. So you kept 6 lakh rupees aside. हाँ. Nothing more than that. You have invested all your other money into market. Now 6 lakh है. जब आपको स्विट्जरलैंड जाना है, at that time market is down. Would your Switzerland trip be funded by that 6 lakh? नहीं. नहीं. So then your next 6 months to 8 months, all your expense. That is a book definition. But book definition is always much broader in sense rather than precise. ओके. Correct. So your next 6 months expense should be covered up. So that means your regular expense, your EMIs, insurance premiums, and over and above that, your SIPs as well. ओके. Correct. All your investments basically या. for long term. Post that, whatever is left that you are investing. Again, when it comes to invest, as you asked, how you look at it. I am a long-term investor. I am not a trader. ओके. I also don't look at the market on daily basis, like you know, Achha. except for clients' money management, I have to. ऑफ कोर्स. But don't look at it like आज कुछ मैंने परचेज किया, वो 10% ऊपर गया, let me sell it off. 5% नीचे आया, let me buy it off. नहीं, it is always a long-term bet. ओके. It goes on rather than intraday trading kind of thing. Now, when you are investing, the first thing that I look for is the promoter. See, end of the day, business में मैं invest कर रहा हूँ, but I am not going to be the one who is going to run the business. हाँ हाँ, मैनेजमेंट देखोगे ना कैसा है. Management. ऑफ कोर्स. It starts always with quality. और सेम चीज़ म्यूचुअल फंड में भी. म्यूचुअल फंड मैनेजर कौन है आप देखो कि किस हिसाब से उनके रिटर्न्स है, क्या नाम है. उसमें शाह बहुत मेरे को दिखते हैं. Yeah, absolutely. Shah and the Marwadi. हाँ. This is the community which is majorly into finance. Okay. As you know, the reason is also there. हाँ. In fact, if you watch it, Okay. In the previous decade, I would say, Yeah. you always see the sharafs हाँ. or accountants. हाँ. They are majorly or this Jains and the Marwadis are there majorly. Very true. Again, nowadays, of course, many other people are also there. Correct. But it goes on from the family, as we started with. हाँ हाँ. वो family से चलता आ रहा है, and you have seen your parents doing it, you say that it's good thing to do, right? And many are following it as a part of their passion as well, right? So fund management में भी देखना पड़ता है, but one thing which is not visible in case of fund management, that is the fund manager strategy. Okay. See, many people say that they are having long-term strategy. They will invest only in quality. But there are a lot of things which is there as a part of PPT, not as a part of portfolio. बराबर. Correct. In case of stock, it's very easy compared to understanding the mutual fund managers or mutual fund houses' own strategy or thoughts. In case of stock, you have single business. हाँ. There is a single person running. When it's a mutual fund, you have a whole team which works. It is never a single fund manager. So how many people do they have? एक म्यूचुअल फंड चला रहा है तो उसमें 10-20. Depends. Okay. But ideally, the largest AMC has about 150 analysts. अच्छा. Correct. Okay. And the smallest AMC has 16 analysts. So who is the largest one? HDFC. SBI and the ICICI is there. Okay. Correct. They have one of the largest analyst teams. अच्छा. Correct.
I'm talking about just the analyst part, Okay. not the management part. Now, if you look at many of the equity funds, they have multiple managers. So again, those managers have different strategies internally. Okay. So again, it is much more deeper subject Okay. compared to just looking at कि some flexi cap fund has invested in foreign also यहाँ पे. But it takes lot of gut. Okay. And the reason why they should invest, why should they stay invested, many other strategy oriented questions are there which are to be answered, Okay. which is not visible on the fact sheet. बिकॉज मोस्टली मैंने जितना इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में वो निफ्टी 50 में आप सपोज कोई भी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो HDFC भी कर रही, SBI का भी है और बहुत सारे अदर कंपनीज है. तो उसमें मैं कौन सा डिफ्रेंशिएट करूँ कि ये ज़्यादा चाहिए क्योंकि निफ्टी 50 में होने तो 50 कंपनी वो भी ये परचेस करने ये भी, तो फ़र्क क्या है? Okay. So again, it goes around opinion, अच्छा. right, and logic, हाँ. which also I'll give. Now, first, when we talk about index, हाँ. and we all know which indexes you are talking about. सपोज इंडेक्स तो नहीं पर अभी म्यूचुअल फंड ले लेते हैं तो म्यूचुअल हाँ. फंड में जाते हैं तो उसके अंदर HDFC का निफ्टी 50 कर रहा हूँ, निफ्टी 50 में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे फॉर एन एग्जाम्पल. हाँ, एक HDFC भी देगी, SBI भी देगी और दूसरे भी ICICI. कंपनीज होंगी. हाँ. Now, here I'll just one thing. हाँ. Index, but which index is very important question, ओके. because in India right now, हाँ. nearly 117 indexes are there. जैसे ITBs हो गया और ये सारे Auto भी हो गया, हाँ. तो वो तो है. हाँ. Those are only 30 अच्छा. sectoral. अच्छा. But with that, there are a lot of strategy oriented indices also. ओके. Like this, total 117 indexes are there, out of which most of the people invest talks about Nifty 50. हाँ वो बहुत or कॉमन है Nifty ना यार. Next 50. Common हाँ है. कॉमन है. Correct. Now, when you are investing in that, your portfolio is going to be completely only 50 stocks. हाँ. No cash in the no cash component in the portfolio because it is an index fund. हाँ. They have to follow the index. ओके. Now the problem is with fund size. The first thing that you should be looking for is the size of the fund. अच्छा. Let us say for example a fund is there which is already about 70,000-80,000 crore. ओके. Roughly I'm saying. हाँ. And there are a lot of other index fund also. Hmm. Like probably SBI Nifty 50 index is there which is about 1,25,000 crore. ओके. Now in that fund only 1% if we take that is to be added or reduced. So that is about 1,250 crore worth of stocks. ओके. And this is the kind of rebalance which is not just to be done by SBI. On the same day or during that period, SBI, ICICI, UTI or all the Nifty 50 index fund have to do the rebalancing. So you have to sell the stocks worth 1,250 crore and buy some other stock अच्छा. which is 1,250 crores or some other odd number. Now that big number is there. When you are selling it, it's a huge sell off by you. हाँ. So the prices in the market may get impacted. डीप आती है थोड़ा. डिप आएगा. हाँ. आप जब वापस से बाय करोगे ना हाँ. तो प्राइजेस उतना अप भी जाएगा. हाँ. दैट इज व्हाट वी कॉल एज इम्पैक्ट कॉस्ट. अच्छा. करेक्ट. दिस इम्पैक्ट Okay. कॉस्ट इज देयर. सो दोज फंड्स हु आर फॉलोइंग जस्ट इंडेक्स and they are having a very high AUM, asset under management, then it is very difficult to do this kind of churning. So they have a lot of impact cost also, plus trading cost is also associated. Okay. So first is you should be looking at AUM. Okay. When it's a pure index fund only then. Okay. Second one, of course, in case of index funds, there is no fund manager's psychology or their mindsets required. कुछ दिया हुआ है सेबी ने कि यही फ्रेमवर्क से आपको ऐड करना है, रिड्यूस करना है. Then you can look at total expense ratio as well. Okay. Whoever is a total expense, lower cost, हाँ. of course they can help you on higher return because cost is lower. Makes sense. But that is particularly for the index fund I am saying. Because वहाँ पे fund manager का expertise का उतना ज़्यादा need शायद से नहीं है. Okay. Correct. Again, expertise is required in terms of when to sell, how much to sell. Should I sell in tranches or all at once? At what time of the day I am selling? Lot of other factors also work. Correct with this. Now coming back to the topic around why the market is down and the gold goes up. हाँ. So economy जब खराब होता है तो उस टाइम पे we always look for risk on and risk off. Okay. तो when you are investing into market, it is risk on. Okay. Hence, you are investing into risky, which is going down. Got So it. what is the alternative to it? You need some other safer asset. That's why this treasury houses or the large fund management houses, they start buying gold.
Okay. When your economy is not doing good, at that time this is worked as a hedge. Correct. So that's why many people called gold as a safe haven. Or second is inflation hedging. That is the other name for gold as an investment. Okay. Inflation hedge क्यों बोलते हैं? हाँ. In fact, if you want, you can check. Okay. Longer term में जो इंडिया का इन्फ्लेशन है ना, हाँ. नियर बाय टू दैट इज अ गोल्ड प्राइस इंक्रीज. मतलब 6% इन्फ्लेशन गवर्नमेंट बोलती है उतना है. 6 नहीं है, आइडियली 8% अराउंड. Okay. इट इज अराउंड एक्चुअल इन्फ्लेशन है. अच्छा. सी गवर्नमेंट के केस में क्या है कि जब इन्फ्लेशन का बास्केट अगर आप उसको देखो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं और आप रेगुलर यूज नहीं करते. करेक्ट. बट रियलिटी में इन्फ्लेशन नंबर जो है दैट इज स्लाइटली हायर फॉर डेफिनेशन भी अलग होती है, पॉवर्टी की भी अलग है. कोई अपने मानेगा ये पॉवर्टी में, वो बोलेंगे नहीं इतना कमा रहा है, बेसिक नहीं है, तो सेम चीज उसमें होगी. एजुकेशन का इन्फ्लेशन 10% है. हाँ. हॉस्पिटल बिल्स उसमें इन्फ्लेशन 10% है. तो कहाँ से 5-6% वेजिटेबल जो उसमें गिनते हैं कि भाई उसमें भी शायद से ज्यादा होगा. उसमें भी ज्यादा है इनफैक्ट. क्योंकि उसमें भी देखो आप वेजिटेबल्स या फिर जो ग्रेन्स हम कंसिडर करते हैं, हाँ, उसमें लेट्स से कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है. हाँ. करेक्ट. हाँ. सो बेसिकली इफ यू सी अल्टीमेटली तो आपका इन्फ्लेशन 8 to 9% के बीच में ऑन एन एवरेज रहा है. गवर्नमेंट नंबर इज अबाउट 7%. Which is kind of misleading. Kind of understatement we would say compared to the urban lifestyle. Makes sense. और आपका गोल्ड का जो प्राइस इंक्रीज है, अगर ये 2024 या तो 25 का जो लास्ट लेग में निकाल दूं, तो गोल्ड रिटर्न वुड बी समवेयर नियर टू दिस ओनली. Okay. सो गोल्ड इज यूज्ड एज अ हेजिंग टू द इन्फ्लेशन. बिकॉज एक और चीज़ है कि गोल्ड के प्राइस जैसे हमने पहले डिस्कस किया चेंज होता है डॉलर में. हाँ. बट वेन यू आर कैलकुलेटिंग इट इन इंडियन टर्म्स योर करेंसी फ्लक्चुएशन इज ऑल्सो काउंट. तो आपका जो करेंसी है वो जितना ज़्यादा आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन है उतना करेंसी भी आपका डेप्रिशिएट होता है. तो जो इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी डेप्रिशिएट हुआ वो भी आपके गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट करता है. सो अल्टीमेटली इफ यू सी द गोल्ड रिटर्न विल बी वेरी नियर बाय टू द इन्फ्लेशन रिटर्न्स, इन्फ्लेशंस इन लॉन्ग टर्म. सो दैट्स वाई पीपल से कि अगर आपको कुछ नहीं करना, लॉन्ग टर्म में सिर्फ पैसा बचा के रखना है, हाँ, तो डू इट इन गोल्ड. बट वो थोड़ा सबको बता दो कि भाई गोल्ड में भी वो सेट वेट बनाओगे तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं. उसमें नहीं मिलेगा. सिर्फ वो बिस्किट. हाँ, बिस्किट लेके रखो. वरना सब कैसा गोल्ड बना देते थे. अब इनफैक्ट बिस्किट क्यों लेना है? बेटर यू कैन गो विथ ETFs नाउअडेज. पर वो थोड़ा मेरे को पता है कि भाई चलो टेक्नोलॉजिकल वाइज सही है, बट अभी भी वो घर में वो लोग नहीं मानते और उस हिसाब से रहता है कि भाई बेटर है कि भाई आंखों के सामने है, वो फील होना चाहिए. भले घर पे रेट पड़े वहाँ पे ले जाए सब. When you are buying even a gold biscuit, you have 3% which you are paying as a GST. Every मतलब first time जब हमने buy किया, making charges are there. Now when you are selling it off, then there is a spread which goes on. So first is spread. अब उसमें से आप डायरेक्ट गोल्ड का ज्वेलरी तो नहीं बनाने वाले. सेकेंड थिंग, एक्सेप्ट फॉर सम बैड सर्कमस्टेंसेस व्हेन यू हैव सोल्ड गोल्ड इन योर फ्रॉम योर हाउस, किसी ने नहीं बेचा. नहीं, कोई नहीं बेचता. करेक्ट. हाँ. तो बेसिकली मैनी पीपल ट्रीट गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट. करेक्ट. बट इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है जिसको आप बेच के कुछ फ्यूचर का एक्सपेंस करने वाले हो. गोल्ड के केस में आप अगर बेचते नहीं हो तो इट इज़ जस्ट एन एक्सपेंस टुडे इटसेल्फ. पर वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, जमीन भी लोग मतलब बेच के. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. हाँ. तो उसको बेचो. पर वो हाँ, वो बात आपकी मैं समझ गया, क्योंकि लैंड में भी ऐसा रहता है ना कि आप लिया यहाँ पे लिया सपोज, और उसके बाद आपको जैसे मिल गया प्राइस तो लेके फिर आप आगे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस हिसाब से बेचा ना. हाँ, एक टाइम पे. हाँ. सो यू कंसिडर इट एज इन्वेस्टमेंट. अगेन लैंड के केस में भी सेम थियरी इज एक्सपेक्टेड देयर आल्सो. आप लैंड में से पैसा निकाला. हाँ. लैंड में से पैसा निकाल के आप क्या करोगे? वापस कहीं इन्वेस्ट तो करूंगा ही ना. कहीं ना कहीं पे वो लैंड ही खरीदोगे. हाँ. इनफैक्ट इफ आई जस्ट शेयर विथ यू ऑन वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल. हाँ. लेट्स से किसी ने 1 करोड़ का एक लैंड का पीस लिया. हाँ. अगेन उसमें 2 पार्ट होता है. हाँ. एक वाइट वाला पार्ट होता है, दूसरा एक पार्ट होता है. सही है. करेक्ट. 1 करोड़ का लैंड आपने 2 करोड़ में बेचा. व्हेन यू आर सेलिंग इट ऑफ, सम वुड कम इन एज अ कैश, ऑफ कोर्स, सम वुड बी वाइट. हाँ. लेट्स से 2 करोड़ के 2 पार्ट है. दस्तावेज आपने 20-30% में करवा दिया और बाकी का. हाँ. तो अब आपके पास जो कैश पड़ा है उसका आप क्या करोगे? विल इन्वेस्ट समवेयर. थोड़ा यूज़ करूँगा. हाँ. कितना यूज़ करोगे आप? वो बात भी है. 2 लाख 5 लाख. हाँ, वो घूमने जाओ उससे ज़्यादा तो क्या यूज़ करोगे उसके बाद. तो घूमने जाओगे ना. हाँ. तो भी अभी तो आपको मैंडेटरी वो वाइट में पेमेंट करना पड़ता है. हाँ, अभी बहुत सारा नियम सरकार ला रही है. करेक्ट.
एंड अगर आप घूमने जाते हो और आपने वो यात्री ऐप पे, ऑनलाइन यात्री हाँ। ऐप पे लॉग इन कर दिया तो खत्म पूरा डेटा है उनके पास। नहीं सही बात है। तो स्टॉक मार्केट में आपको क्या लगता है कि पैसे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिसके पास राइट इन्फॉर्मेशन है, जिसको फंडामेंटल्स क्लियर है, तो वो जितने पैसे डाले वो बढ़ ही सकता है। अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर है, रिक्वायर्ड है। क्योंकि अगर आप मार्केट का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेट्स से वॉरेन बफेट ने बोला है, आई डिडंट इन्वेस्टेड इन IT बिकॉज आई डिडंट अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ट्रू। उसका मतलब ये थोड़ी कि उनको IT पता नहीं चलता था। हाँ। पता चलता, बट IT का जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड मे बी उन्होंने किया था उतना, उससे कहीं ज़्यादा हुआ, या फिर बिजनेस को इन डिटेल में शायद से उनको उससे बेटर अपॉर्चुनिटी कोई और मिल गई थी उस टाइम पे। पॉसिबल होगा कुछ ना कुछ होगा। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो होता है ये सारी चीज़ें। यस, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस पीपल, इफ यू लिसन टू मिस्टर दमानी, हाँ करेक्ट, और झुनझुनवाला जी के जो भी प्रीवियस इंटरव्यूज हुए, हाँ, दे ऑल फोकस ऑन वन थिंग, try to understand the business. If you understand the business, then you can make the money. हाँ, If you don't understand the business, उसमें इन्वेस्ट करके पैसा अगर बन भी गया ना तो इट इज ऑल लक, नथिंग एल्स। डीमार्ट का केस भी आता था, फंडामेंटल्स को पता था कि कैसा है, कि कैसे उनको करना है, प्राइस पे कम्पीट करना है, कैसे Correct. करेंगे सारी चीज़। इनफैक्ट मैनी पीपल टॉक अबाउट एटर्नल जोमेटो जोमेटो फ्रॉम सम 140, हाँ it fell down to 75, हाँ again now at 300. Those who understood why from 150 to 75 and why from 150 to 75 to 300, they would know what exactly is happening in the industry. When we say that Zomato is a good company, हाँ absolutely. हाँ But now the first thing is of course about the who is running the business. The second thing comes in which you should check every day, which is what kind of business it is going forward. Past में क्या किया था ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ आगे क्या दिख रहा है. हाँ Let's say for example, some new company comes in which says we will do the delivery in 25 rupees if your order value is below 400, and 50 rupees if it's above 400 up to some kilometer. ओके। What will happen to the business of Zomato? Who will, I mean, तो मोस्टली बीच में बात थी कि शायद से फ्लिपकार्ट भी वो मतलब आने वाली थी, Rapido. रैपिडो Rapido फ्लिपकार्ट का भी is- पता नहीं, बीच में मैंने कहीं सुना तो था, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट Rapido is the रैपिडो one. इज ओके। they have started a pilot model अच्छा somewhere in Bangalore to the best of my knowledge. ओके। They are in planning to. But Okay. think about it, what kind of destruction may happen to that particular business. So first issue is with that. I'm not saying to sell Zomato or anything. I'm just saying why you should look at every business in your portfolio on a regular note. Because now it has nothing to do with Dipender Goyal or his business. But some third party came in. He suggested on this part. हाँ Correct. Second thing, who is running the business? Dipender has stepped down. हाँ, अभी CEO नहीं है, नहीं है. उससे एलिजिबल लोग किसी को लाया है। एग्जैक्टली तो अभी नेक्स्ट जो है वो शायद से ब्लिंकिट से भी हो सकता है, बिकॉज ब्लिंकिट हैज कंट्रीब्यूटेड मच मोर हायर प्रॉफिट्स. हाँ, ब्लिंकिट से तो चल रहा है अभी जोमेटो। हाँ एग्जैक्टली. पर आपको पता है स्विगी पहले आया था, उसके बाद जोमेटो, मेरे को भी नहीं पता था, और Yes. अभी जोमेटो आ गया स्विगी पीछे। स्विगी पीछे है. सो स्विगी लॉस्ट द रेस प्रॉब्ली इन माई ओपिनियन व्हेन जोमेटो लॉन्च दिस डिस्ट्रिक्ट ऐप हाँ एंड द जोमेटो गोल्ड. ओके, वो मेंबरशिप वाला वो कैश इन नहीं कर पाए थे। एग्जैक्टली. तो मतलब यार 30 रुपीज में वी ऑल नो हाँ. दैट जोमेटो इज नॉट गोइंग टू मेक मच बिगर मनी. हाँ बट वो 30 रुपीज़ जो दिया ना, सो नाउ आप उसमें स्टक हो कि मतलब मैं जोमेटो ही देखूंगा, मैं स्विगी पे नहीं जाऊंगा. कंपैरेटिवली बिजनेसेस आर देयर. हाँ बेसिकली व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, द फर्स्ट थिंग इज अबाउट हु इज रनिंग द बिजनेस. सेकेंड वन इज अराउंड हाउ द बिजनेस इज. ओके। The third and the important one, which they always look at, we were actually discussing around how the big bulls are investing. So when they invest, they always look at what valuation they are buying some business. ओके। See, आपको अगर अच्छा लगा कि कोई चीज़ का क्वालिटी अच्छा है, हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, बट उसके लिए एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा पैसा देना है, तो एज अ स्टेटस गुड ठीक है, यू वुड परचेज. But when you're doing investment, we always want to buy low and sell high. So valuation wise, it should also be lower. Now valuation again, it's a game of how you look at some business. Correct. If you say that some business is costlier, or you are giving the premium for those business, again there should be some particular thing which is not there with any other business. Like
let's say for example some smaller IT company. आई थिंक PVR इज़ अ गुड एग्जाम्पल बिकॉज PVR जिस हिसाब के सिनेमेटिक एक्सपीरियंस जो दे रहा है ना, मतलब नॉट बायसनेस कुछ नहीं, मेरे पास शेयर्स है और कुछ नहीं, बट वैसे ही बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल वो सिनेपोलिस ऐसा कोई भी दूसरी कंपनीज है वो उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे जो PVR दे पा रहा है. तो शायद से अभी उनमें बहुत डीप आया था, पर बीच में अभी शायद से मेरे को लगता है 5 या 10 ईयर डाउन द रोड कि ये फ्यूचर हो सकता है सिनेमा का. Very true. And in fact, see, this is the we can say the classic example for us in the live one, wherein we are having different opinions. 100%. Let's say for example, you have experienced the product. हाँ. I mean the Like services go to of PVR, I know कि भाई क्या है क्या नहीं, yes. I'm very bullish about it. Correct. हाँ. So as a consumer, you are very bullish. हाँ. Now as an investor, how we think? As an investor, I would look at PVR gives very good thing. हाँ. We can afford it, so we will go there. But let's talk about the broader people. You know, are the people ready to spend $1,000 for watching one movie? In metros they are, yes. In metros, yes. Yeah. But when the valuation comes, we always look at whom they are catering to. But if what you're is the catering to the top kind 1% of capacity? Indians, then it will be better ना. जैसे 1% top आप देख 1%, रहे हो. But again, PVR, if you see, हाँ. it is there on every, you know, in every city there are at least 10 हाँ, आराम से. theaters. Right, but it is not necessary in all those 10 theaters seats are being filled up. As a business perspective, you know, when you are having some cost which is involved, against that how much is the utilization which goes on, the capacity and the utilization. Makes sense. PVR के केस में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना, उसने थिएटर बना दिया, हाँ. सीट्स वहाँ पे आ गए, वन टाइम कॉस्ट है, फिर डेप्रिसिएशन होता रहता है और कुछ वो रेगुलरली होगा. हाँ. तो मतलब कॉस्ट जो मेंटेनेंस का वो रेगुलर लगने वाला है, वेदर यूज हो ना हो, एनीथिंग. मेक सेंस. बट आपका जो रेवेन्यू है ना, वो जब लोग आएंगे वहां पे और बैठ के मूवी देखेंगे तभी होगा. इट्स अ वेरी डिबेटेबल थिंग बिकॉज सिनेमा अभी कहाँ जा रहा है. लोग बहुत सारे OTT पे बुलिश हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अच्छी मूवी होगी तो ही मैं सिनेमा पे जाऊंगा. तो वो बहुत ट्रिकी चीज़ है. एग्जैक्टली. हाँ. सो नाउ दिस इज द, यू नो, हाउ एज अ investor my viewpoint is, on the other side you are also there as a consumer and the investor, how your viewpoint is. I'm not saying PVR is not good, I'm just giving you another perspective, because PVR is end of the day in the field of giving the entertainment base. Right. Correct. Now in that field, if I am getting some Amazon or Netflix in foreign market at certain valuation, and on the other, which is catering to every one of us, right, India, US, everywhere, and the second one is PVR, which has to do the certain expenses. In case of OTTs, all they need is a distribution network and a good backend support. That's it. They don't need to do much of the capital expense. True. Like PVR. So this is where the valuation comes in. At what valuation I'm getting PVR, at what valuation I'm getting OTT platforms, because both are into the entertainment industry. Now OTT is not stick to just movies. It is about cricket, it's about entertainment shows, short comedy shows also, and the podcast also. True. So you always look at valuation in a comparative manner. When you are paying premium for certain thing, a value in valuation terms, we always look at what is such a good thing about this thing or this particular business for which I'm ready to pay the premium as well. Okay. Correct. And it is always, see, the things that I mentioned, it is always about quality. हाँ. We haven't gone into the profitability yet. Yes. True. Numerics में तो अभी गए नहीं. तो ऑलवेज आपका जो इन्वेस्टमेंट का जर्नी है, जो बिग, यू नो, ये जो बड़े इन्वेस्टर्स है या फिर लर्नेड इन्वेस्टर्स है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, आफ्टर स्टडिंग दिस थिंग एंड माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन और अंडरस्टूड is all that your journey starts with understanding the quality. Quantity comes later on, all your balance sheet part. It's a secondary. First quality देखो, quality क्या है. अगर quality बेकार है, कोई भी बिजनेस अच्छा हो बट अगर प्रमोटर अच्छा नहीं है ना, वो अच्छा, मतलब इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं करेगा ओवर द टाइम. वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स. वो सेम चीज़ है फुटबॉल क्लब्स में भी है. फुटबॉल फॉलो करते हो क्या थोड़ा? आई एम बिट क्रिकेट फैन रादर देन IPL में भी आप देख सकते हो. क्लब्स में बहुत सारी चीज़ मैटर करती है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है, प्लेयर्स आप कैसे परचेज करोगे, कैसा वो सब, तो वही ट्रॉफीज बाद में वही डिसाइड करता है. यू टेक अ लुक एट दिस, यू नो, इन माई ओपिनियन, CSK का ब्रांडिंग कैसे हो रहा है? धोनी के थ्रू ही हो रहा है. और ही इज अ प्लेयर, ही इज नॉट द ओनर. हाँ. करेक्ट. मतलब CSK मतलब धोनी ही याद आता है. धोनी याद आता है. ही इज अ प्लेयर. मतलब आई मीन
he is not even probably the investor in it, or he is not the one who decides the team. True. Correct. हाँ. Team management is very different. उनके भी ऊपर levels levels are there, हाँ, hierarchies are there. हाँ हाँ हाँ. But when we talk about some other teams, don't want to name anyone ताकि course. किसी का नहीं ego hurt ना हो जाए. गुजरात में बैठ के गुजरात की बात नहीं कर रहे, तो बीच में हुआ था ऐसा Exactly. कि कुछ सीएस के फैन हो तो बोले गुजरात में रह के सीएस के फैन हो तो क्या हुआ यार. तो क्या हुआ, हो सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है. Yes, and see, CS के फैन से भी we are all धोनी fans. Actually हाँ, very true. start तो वहीं से हुआ है. हाँ. Right. अब उसके अलावा कुछ और भी ब्रांड्स है हाँ. जिनका स्टार्टिंग हुआ था एज अ अल्कोहल ब्रांड. हाँ, आई मीन करेक्ट. अभी नाउ उनका सिचुएशन भी वैसा ही है. हाँ. 18 साल के बाद उनका कुछ वैल्यू बना है. हाँ. राइट. सो बट या अगेन हु वाज ओनिंग दैट टीम. सेम थिंग गोज फॉर कंपनीज ऑल्सो. हाँ. Who owns the business? That is very important. And how the business is. Business का scalability क्या है? Business बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे है, बट उसका स्केलेबिलिटी नहीं है. क्या करोगे? आपको फ्यूचर में क्या लगता है कि जैसे स्टार्टअप्स और भी ज़्यादा ग्रो होने वाले हैं, जैसे आपने बोला कि भाई कंपनीज एआई में होके कंपनीज सबका टर्नओवर रेशियो बढ़ जाएगा, जिसके हिसाब से कि मतलब जो 1000 लोगों की टीम थी वो 100 लोगों में सेम एफिशिएंसी सेम काम कर सकती है. तो मोस्टली अभी नंबर ऑफ कंपनीज फिर बढ़ेगी ना, क्योंकि मोस्टली अभी सब बोला कि 3 जन बैठ के पूरी कंपनी चला सकते हैं, तो व्हाई नॉट कंपनीज बढ़े एज कम्पेयर टू जो थे. तो मेरे को लगता है कि शायद से कंपनीज ज़्यादा ग्रो कर सकती है एज कम्पेयर टू जो नंबर ऑफ कंपनीज. नंबर ऑफ कंपनीज. तो वो भी एक थियरी है. Let's divide it into 2 parts. हाँ. One is when you say that many number of companies will be there. हाँ. जितने ज़्यादा कंपनी बढ़ेगी उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन पे प्रॉब्लम्स आएंगे. तो अगर कंपनीज बढ़ रही है तो जो बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ कंपटीटर बढ़ेंगे ना, वो बिजनेस अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर के लिए नहीं रहेगा. वेरी ट्रू. बट ऐसा आप नहीं हो सकता ना कि कोई भी कंपनी है जैसे ग्रीन एनर्जी ले लो तो उसमें सिर्फ अडानी ही टॉप पे, बाकी सारी कंपनीज और दूसरे कंपनीज का भी कुछ रोल होता होगा ना, छोटे मोटे जो लोकल लेवल पे ही कर रही है, जो अपने को पता ना हो. करेक्ट. वो भी ऐड तो कर रही है इंडस्ट्री में ओवरऑल. ऐड कर रही है, बट अभी जो ग्रीन एनर्जी की बात है वहाँ पे बहुत कम कंपटीशन है. वो कैपेक्स बहुत है ना यार वहाँ पे, कहने का मतलब कैपेक्स है, कॉम्प्लिकेशंस भी उतने हैं, गवर्नमेंट Regulations, रेगुलेशंस, मेनी थिंग्स आर देयर. ट्रू. सेकेंड थिंग, जब तक रिन्यूएबल एनर्जी की बात है तो वो सेक्टर में लिस्टेड कंपनीज कितनी है? वेरी फ्यू. करेक्ट. जो वारी है और वो सब होगा बेने, मतलब वारी सोलर इज देयर. हाँ. बट अगेन वो अब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स करेक्ट अबाउट वैल्यूएशंस आल्सो एंड मेनी अदर थिंग्स आल्सो. बट ठीक है. अगेन आपके पास इन्वेस्टेबल कंपनीज कितनी कि जहाँ पे आप आंख बंद करके डाल सको 5 साल कोई दिक्कत नहीं. हाँ. आपके पास बैंक बहुत सारे इन्वेस्ट करने के तो बोले यस, HDFC, एक्सिस, ICICI, लॉट मेनी बैंक्स आर देयर, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, मेनी अदर आर देयर. बट वो कहीं ना कहीं पे आप इन्वेस्ट कर पाओगे. रेगुलेटर भी अच्छा है बैंकिंग के लिए. EV और रिन्यूएबल में उतनी ज़्यादा कंपनीज नहीं है, प्रिसाइज निश कंपनीज है. करेक्ट. सो एट दिस स्टेज प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, अगेन डिफरेंट स्टोरी है. जब कंपनीज बढ़ेगी वहाँ पे तो प्रॉफिट पे और इश्यूज होंगे. करेक्ट. उतना इजीली प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे. लाइक सब प्राइस पे कम्पीट करेंगे, वो स्टेज आता था कि सब माल बेच रहे तो भाई तू कितने में दे रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल, इनफैक्ट बैंक्स में टू सर्टेन एक्सटेंट स्टार्ट हो गया. HDFC बैंक इज गिविंग द नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट रिटर्न 2.5%, 2. सर्विस पे कम्पीट कर रहे हैं और कुछ है ही नहीं यार. Correct. And Kotak Bank is there on the same scale, offering you 6% if you are having some balance above 1 lakh on an average. Correct. And कुछ और भी condition है, but again more or less marketing के लिए 6% बोला है. उन्होंने 2.70 बोला. तो again ये क्या है? ये बेसिकली इंटरेस्ट जो पे करे वो कंपनी के लिए कॉस्ट है और आपके लिए वो बेनिफिट है. तो बेसिकली वो कॉस्ट एंड बेनिफिट पे ही फिल, मतलब वैल्यू एडिशन जो है ना वो धीरे धीरे गायब होता जाता है मार्केट से. ओके. सो कोई भी बिजनेस में अलग अलग स्टेजेस होते हैं. इनोवेशन, ग्रोथ, कॉम्पिटिटिवनेस एंड देन मैच्योर्ड फेज. लाइफ साइकिल बोलते हैं. लाइफ साइकिल. पहले इनोवेशन आएगा. whoever comes first they will earn the more. Ideally that is the idea. होते हैं वहाँ पे. हाँ. फिर आता है आपका इनोवेशन के बाद में थोड़े बहुत कंपटीशन ऐड होता है. जहाँ पे मास ऑडियंस हो, सब मास ऑडियंस. तो वहाँ पे डिफरेंशिएट होना चालू होता है. कौन अच्छा बिजनेस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. जो नहीं कर रहा वो आउट हो जाएंगे, जो अच्छा कर रहे हैं वो मार्केट में सस्टेन करेंगे. वंस दे आर देयर देन द प्राइस वॉर स्टार्ट्स. क्वालिटी के बाद प्राइस वॉर आएगा. प्राइस वॉर हो गया
खत्म, कंपटीशन खत्म, अब आएगा मैच्योर्ड फेस. करेक्ट. सो इनोवेशन, ग्रोथ, एज द न्यू कंपनी कम्स इन, स्मॉलर कंपनी ग्रोस, क्वालिटी और बेटर क्वालिटी, लो क्वालिटी बिजनेस डिफाइन होगा, जो अच्छे नहीं वो बाहर. बाद में प्राइस वॉर, प्राइजेस लो हो गए, प्रॉफिट मार्जिन, फिर मैच्योरिटी. करेक्ट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट. समटाइम्स आई वंडर कि जहाँ पे जो सिलिकॉन वैली स्टार्टअप है और मोस्टली अपने यहाँ पे बेंगलोर, दोनों अपने को मोर और लेस लग दिखते हैं कि भाई सेम ही है, सिलिकॉन वैली यहाँ का है. तो आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप्स वहाँ पे उनको जो एडवांटेज मिल रहा है वो सेम लेवल का एडवांटेज इंडियन स्टार्टअप्स को है? और है तो कहने का मतलब मैं ऐसा मेरे को नहीं पता कितना ट्रू है कितना नहीं, बट वहाँ के स्टार्टअप्स जो लोग हैं वो वैल्यूएशन निकाल पाते हैं वो लेवल की, और अननोन फेस भी बिलियनियर बन सकता है कल. बट यहाँ पे वो चीज़ है या फिर ऐसा होता है कि भाई पे मिड या तो स्मॉल कैप. हाँ, मतलब सिलिकॉन वैली एंड बेंगलोर बोथ आर नोन फॉर देयर IT इनोवेशन ओरिएंटेड, AI ओरिएंटेड वर्क. छोटी कंपनीज बहुत सारे जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, लिटरली आई एम सेइंग अच्छा काम कर रहे हैं. ओनली थिंग इज दे हैव अ लोअर स्केल टू वर्क एट अ ग्लोबल लेवल. ओके. बिकॉज ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन उतना है. हाँ, यू हैव लॉट ऑफ कम्पीट फ्रॉम चाइना. क्वालिटी नहीं दे पा रहे अपने एज कम्पेयर टू ऐसा. क्वालिटी एंड एट दैट प्राइसिंग. सी आज इंडिया में द प्रॉब्लम इट स्टार्ट्स विथ योर ओन स्किल सेट. जो अच्छी स्किल सेट के लोग हैं वो कम है. हाँ, आपको काम करना है ग्लोबल लेवल का, हाँ, तो वहाँ पे चीप लेबर नहीं मिलेगा. बेसिकली चीप एम्प्लॉय का सैलरी या तो जो उसके लॉज है वो फॉलो करने में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. सेम यूएस में है वो $100,000 में होगा, और वो सेम एम्प्लॉय पे आप रखोगे तो 100,000 एग्जैक्टली. जो स्पेशलाइज्ड वर्क है उसके लिए. हाँ, 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 जो स्पेशलाइज्ड वर्क नहीं है, हाँ, डेटा एंट्री का काम है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. एंड इसीलिए बहुत सारा यूएस का वर्क यहाँ पे आउटसोर्स क्यों हो रहा है. वहाँ से यूएस का वर्क यहाँ पे आउटसोर्स हो रहा है बिकॉज यूएस में एवरेज IT में कोई अगर जॉब लेता है तो $5,000 to $6,000 पर मंथ वुड बी द स्टार्टिंग. हाँ, बराबर. $50,000-$60,000. $50,000-$60,000 दैट इज नियरली 45 लाख फॉर इंडिया डॉलर टर्म्स. यहाँ पे जो बंदा स्टार्ट करता है दे स्टार्ट एट 2 लाख 3 लाख मेजरली. हाँ, LPA. करेक्ट. हाँ. अब वो 2-3 लाख में एक बंदा मिल रहा है, वहाँ पे फ्रेशर एक 45 का मिल रहा है. इसीलिए तो ये सारी कंपनी ने इस पैसे बनाए ना. Exactly. विप्रो, TCS सब वही आउटसोर्स किया और कुछ है Exactly. नहीं. हाँ, तो वो आउटसोर्स का वर्क किया उन्होंने यहाँ हाँ, पे. हाँ, हाँ, हाँ. एंड दे डिड अ गुड जॉब टिल नाउ. हाँ, नाउ द थिंग इज वहाँ पे AI आ रहा है. सो बेसिकली AI इनोवेशन से हाँ. जो ये जो आउटसोर्स करके हायर करना पड़ता था वो धीरे धीरे कम हो रहा है. ट्रू. एंड वही रिस्क जो है वो यहाँ पे क्रिएट अप हुआ है अभी के लिए. तो इसीलिए अगर एंथ्रोपिक का रिसेंट एक न्यूज़ था, एंथ्रोपिक हैज मेड अ क्लाउड एजेंट. अच्छा. नाउ दैट AI agent can do much of the work which is being done in India and globally. हाँ. Due to this reason only हम शूट कर रहे हैं तो यहाँ से लास्ट के 1 या 2 वीक्स में ओवरऑल नेस्डेक भी करेक्ट हुआ, लॉट ऑफ कंपनीज करेक्टेड एंड इन्फोसिस, TCS हैव बीन बिटन अप अ लॉट. करेक्ट. तो वहाँ पे प्रेशर प्राइसिंग में इसी वजह से है. ओके. Some article was there which was saying by 2030 or 32 50% of the revenue may get affected of this Infosys and the TCS majorly. इसे मतलब अच्छा टाइम नहीं है IT कंपनीज बाय करने का. Again, IT कंपनीज मतलब कौन सी? जैसे Infosys, TCS है, then they have a major risk which is arising. Now, अब ये रिस्क से पहले, हाँ, AI से पहले Infosys, TCS अच्छे थे बिजनेस तो बोले हाँ. आज भी अच्छा बिजनेस करे तो क्या हाँ. प्रॉब्लम इज यहाँ से 5 साल के बाद क्या होगा, तो मार्केट लुक्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ आफ्टर 5 years. ओके. And that's why the one that I mentioned, whether you trade on daily or not, you should be looking at the news regularly. Okay. Correct. Okay. So I'm not saying that they are not going to do good or it's a sell They'll do opinion. something, but basically What if they are able to innovate? हाँ, अगर Infosys, TCS ने अगले 5 साल में कुछ बेटर बनाया कि जो एंथ्रोपिक ने बनाया है, करेक्ट, उससे बेटर कोई प्रोडक्ट बनाया जो कि यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, उसके सर्विसेज दे पा रहे हैं, तो इवन बेटर वर्ल्ड विल कम टू Infosys एंड TCS. करेक्ट. फॉर दैट काइंड ऑफ इनोवेशन इज रिक्वायर्ड. मार्केट इज राइट नाउ रिएक्टिंग टू व्हाट न्यूज हैज जस्ट कम इन, राइट. सो आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज बैड बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो, बट yeah, if you have very high exposure to Infosys, TCS or those kind of thing, this news can affect your investments basically. Okay. Yes. Makes sense. Nice.
क्योंकि है ना बहुत सारे अभी रूल्स हिसाब से सबके अलग अलग होते हैं. आप जितने भी जाओगे ना यूट्यूब पे सबके अलग रूल है कि भाई ये करो ये करो ये करो. पर मोटा मोटा पता चल गया कि भाई ये एक नया इंसाइट मेरे को मिला कि टर्म प्लान और लाइफ इंश्योरेंस वो लेना चाहिए. मतलब क्योंकि मैं ऐसा उसमें था कि लाइफ इंश्योरेंस में मैं इतने पैसे डाल रहा हूँ इतनी एज के लिए, और उसके बाद वो सेम पैसे मैं म्यूचुअल फंड में डालूँ तो क्या रिटर्न मिलता है क्या नहीं मिलता. पर वो बीच में ही ब्रेक हो गया. एक्चुअली दिस इज हाउ आवर माइंडसेट्स हैव बीन ट्रेन्ड टू लुक एट. जो भी हम पैसा कुछ भी चीज खरीदने के लिए देखते हैं ना, हाँ, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट के साथ देख लेंगे. हाँ सही मतलब इंश्योरेंस, हाँ, तो उसको हमने इन्वेस्टमेंट गिन लिया. हाँ, नाउ इंश्योरेंस इज टू कवर यू अप फॉर योर रिस्क. इट इज नॉट फॉर रिटर्न. हाँ बराबर है. योर इन्वेस्टमेंट इज प्योरली फॉर योर रिटर्न. इट इज नॉट फॉर योर लाइफ रिस्क. ओके. तो लाइफ के रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क है, वहां पे टर्म प्लान होना चाहिए. अगर हम 22-25 चलता है, लेना ही चाहिए. मतलब absolutely. See, the earlier you buy the term plan, lower will be the premium for the next 40-50 years of whatever the duration you are buying the term plan for. Very true. अगर मेरा खुद का टर्म प्लान है, हाँ, मैंने जो इनिशियल एज पे लिया था ना, हाँ, वो टर्म प्लान मुझे कुछ 3-4 हज़ार रुपये समथिंग में पड़ा था. 25 या 30 लाख, मतलब वेरी यहाँ से 12 साल पहले की बात है. Got it. So at that time, having this much amount of term plan, as per the income, वो उस टाइम पे उतना ही मिल रहा था. अभी के लिए 30 times of your income open है, उतना आप ले सकते हो. मैंने उसके बाद में जो टॉपअप किया, that was costing me about 7600 rupees something annually. 7600, okay. Again, वो 5 साल हो गया. उसके बीच में again it was somewhere about 80 lakhs to 1 crore. अगर मैंने रिसेंटली नया एक ऐड किया, हाँ, टर्म प्लान एडिशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. आई विल टेल यू व्हाई. हाँ, रिसेंटली नया ऐड किया, हाँ, बट उस टाइम पे ऑफकोर्स अपन चेक तो करते ही है. हाँ, द सेम विच वॉज कॉस्टिंग मी 1 crore फॉर 1 crore एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एट 7600. राइट नाउ इट इज कॉस्टिंग मी अबाउट 15,000 to 16,000 bucks. डबल हो गया यहाँ से 40 ईयर्स के लिए. ओके. नाउ व्हाई इट शुड इंक्रीज? बिकॉज आपका इनकम है उसका 30 times मिलता है. हाँ, आइडियली टर्म प्लान कितना होना चाहिए? इट इज़ ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन अराउंड दिस. ओके. अगर आपका इनकम जो है हाँ, ईयरली 12 लाख है, हाँ, तो उसका 20 times होना चाहिए. बराबर. बट 20 times क्यों? वाई नॉट 25, वाई नॉट 15? 20 times है. अब उसको आप नहीं हो तो बैंक में भी रखेंगे ना, दैट 5% दे विल बी एबल टू रिप्लेस योर इनकम. लेट्स से 12 लाख है, 20 times इज 2 crore 40 lakh. 2 crore 40 lakh का अगर 5% आप गिनोगे, यू विल गेट 12 lakhs बैक. हाँ, Right. बराबर है. सो दैट्स वाई 2 crore 40 lakh इज रिक्वायर्ड. हाँ, बट अगर 12 लाख का इनकम है, इनिशियल एज पे हो, हेल्थ अच्छा है, तो आपको 3 crore 60 lakh तक का मिल सकता है. सो इनिशियल एज पे टेक द वन विच मैक्सिमम यू कैन अफोर्ड. हैव 3 crore 60 lakh इफ यू कैन अफोर्ड. हाँ, बराबर है. वो ले लिया. उसके बाद में लेट योर इनकम ग्रो. Once your income is there, let's say if it grows to the level of 24 lakhs, 12 lakhs से 24 lakh, डबल हो गई. अब आपको चाहिए 4 crore 80 lakhs का. हाँ, आपके पास है कितना? 360 का. हाँ, 1 crore 20 lakh का यू कैन ऐड. Correct. टॉप अप कर सकते हो. बट वो टॉप अप करना है या फिर एडिशनल बाय कर लो आप. ओके. करेक्ट. बट 1 crore 20 lakh का प्रीमियम उस टाइम के एज के हिसाब से आएगा. वो तो 3 crore 60 lakh के लिए फिक्स हो गया प्रीमियम 22 साल के एज पे. 28 पे वही प्रीमियम आप चेक करोगे ना, तो इट विल इंक्रीज बाय 30-40%. एंड बीच में अगर ये कोविड जैसा पीरियड आ गया, इट कैन इंक्रीज बाय 50%. ओहो, बरोबर. सो हैव दिस पॉइंट इन माइंड. अर्ली एज पे टर्म प्लान लो, अर्ली एज पे हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस. कोई भी और डिसीज डिटेक्ट हो उससे पहले. ओके. देन लुक फॉर दिस इन्वेस्टमेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म. ओके. इनिशियली इक्विटी अगर नहीं भी लोगे चलेगा. मतलब ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ होनी चाहिए. एग्जैक्टली. ओके. राइट. थैंक यू फॉर कमिंग. मजा Yeah, आया. same here. आपको भी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो. Absolutely, yes, great. Yeah. इनफैक्ट डिस्कशन जितना रॉ होता है ना, जैसे अभी अपना पूरा डिस्कशन रॉ गया. सही है. सो जितना रॉ डिस्कशन होता है उतना ही डिस्कशन करने का मजा आता है. बिकॉज वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आता है वो लिंकेज में आता रहता है कि बोले यार इसके बाद में अभी और क्या होगा. सही बात. लाइक वी आर इन दैट एक्चुअल सीक्वेंस. करेक्ट. कि कनेक्टिंग चीज़ अभी क्या आ रही है. बिकॉज मोस्टली मैं वही ट्राई करता हूँ कि हो सके जितना सीख पाऊँ ना, क्योंकि सारा नॉलेज तो है नहीं मेरे पास, पर रोज नए नए गेस्ट सामने बैठते रहते हैं. तो क्या एक अभी फाइनेंस का है, नेक्स्ट टाइम कुछ अलग होगा, कुछ अलग होगा, तो उस हिसाब से मजा आती है सीखने में. परफेक्ट. यस, एब्सोल्युटली. थोड़े फोटोज ले लेते हैं और फिर वी आर गुड टू गो, है ना. यस. नो वरीज यार.